Namaskar. I hope you are able to hear me. So this is Connect with Lax monthly session where we meet and try to discuss about how to better use Lax, and simultaneously we also talk about what you can improve in terms of your processes. And that is what we did probably in last session, where we basically did not focus much on lags, but we talked about how to create process, right? So probably last session was mostly about the process, and in this session we'll try to focus on how to use lags rather than trying to think about the processes in the market as such. And if you have any question, always feel free to ask in comment, or once I'm done, then probably you can ask live also. So like that is also fine. And before I do that, I'll just I'll just uh, post the link. Okay, on X. I think I've not posted yet. So just give me 1 minute. Okay, not even 1 minute. What is this? Just use this few seconds, and then we'll be taking. Okay. Ajay. So now we can continue. So let's first, start with the बेसिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कुछ भी करने जा रहे हैं मार्केट में, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मार्केट में वेदर कैसा है, राइट? मौसम कैसा है? सो अनलेस यू नो व्हाट काइंड ऑफ वेदर यू आर इन, you cannot decide what kind of things you can do, what kind of things are going to be profitable, what kind of things are going to be loss making, right? So here we are talking about in terms of probability, right? Even though a day in market might be very bad, but you can still make some money because something happened, or some exceptions are always there, right? But we are talking about the probability. So in terms of probability, you have to figure out what kind of weather it is. And by the way, if you are interested in trying to figure out a system which can help you comprehensively uh, how to decide the market environment, you should watch the last session. So today we'll just briefly go through that. So I think since it is because of earning season, we have too much of data to actually load in uh, very small amount of time. So that is why it takes time. You might have noticed that these days the data updates come little late, like 2 3 hours more. Uh, in future we are going to fix it so that even on earnings days you'll get the updated data mostly around the same time. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. So today, although it is 15th May, and this is fifth session, but the data we'll be looking at will be 14th May, है ना? ये 14 मई तक का डेटा है. ये आप हमेशा यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है? So अभी आप इसके हिसाब से देखोगे तो it was briefly. So it is yesterday's data. So yesterday we had seen कि mild जो है बाइंग थी FII DII दोनों साइड से, राइट? और अगर आप ये सेक्टर वाले इंडिसेस देखोगे, इसमें अगर आप देखोगे तो लास्ट 1 वीक में मेटल फार्मा, दे डिड वेरी वेल, बट बाकी सारे रेड है. अगर लास्ट 1 मंथ में देखोगे तो फार्मा, डिफेंस, मेटल, ठीक है, 10% के ऊपर है एक महीने में. बट बाकी सब देखोगे तो सब उसके नीचे है, राइट? और अगर आप एक दिन का देखोगे तो उसमें फार्मा, मेटल, है ना, और फाइनेंशियल सर्विसेज और कई सारे हैं उसमें, ठीक है. सो अगर आपने महीने वाला देखा तो आपको इससे क्या पता लग रहा है कि भाई देखिए, फार्मा, डिफेंस एंड मेटल, थ्री सेगमेंट्स है ना. केमिकल में भी आप 7 8% है, बट उसके अलावा कोई ऐसा है नहीं जिसका इंडेक्स हो, है ना. सो आपको दिख रहा है कि ये 3 4 इंडेक्स थी, फार्मा, डिफेंस, मेटल, केमिकल, राइट? ये 4 इंडेक्स. इन इंडेक्स के जो भी पार्ट हैं, अब उसके आप छोटे स्टॉक देखोगे तो वो हो सकता है डायरेक्ट इंडेक्स का पार्ट ना हो, बट उसी थीम का है. तो अगर आपने वैसे स्टॉक्स में ट्रेड किया होगा लास्ट 1 महीने में, यू वुड हैव मेड मनी. लेकिन अगर आपने कुछ और चुन लिया ना, आप गए निफ्टी मीडिया में जाके कोई आप सन टीवी ट्रेड कर रहे हैं ना, या जी इंटरटेनमेंट ट्रेड कर रहे हैं ना, सो यू विल नॉट मेक मनी. इट इज बिकॉज यू आर पिकिंग अ सेक्टर जहां पे कुछ हो नहीं रहा है. सो लाइक जहां पे सारे लोग डेड हैं, दे आर बिहेविंग लाइक डेड. अब वहां पे आपको मैराथन दौड़ने वाला कैसे मिलेगा? मैराथन दौड़ने के लिए तो फिर एक्टिविटी चाहिए ना. तो वो एक्टिविटी वाले सेक्टर में आपको जाना पड़ता है, राइट? तो अगर आप देखोगे तो ये वेरी क्लियर है. आप सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग, कह रहे
एक महीने में तो वहां पे भी बहुत रैली हुई है, कहाँ पे, डेटा सेंटर में, राइट, पावर सेक्टर में, राइट। उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि डेटा सेंटर या पावर, इन दो में से किसी का भी इंडेक्स नहीं है निफ्टी में। डेटा सेंटर का तो कहीं भी नहीं है, और जो पावर है उसका निफ्टी में नहीं है, एनएससी में नहीं है इंडेक्स, ठीक है, बीएससी में है, ठीक है। सो वो चीज, सो हम उसकी बात करें जो एनएससी में ऑलरेडी आपके सेक्टर्स हैं, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो फार्मा, डिफेंस, मेटल, थ्री सेक्टर्स देवर स्टैंड आउट परफॉर्मर, राइट। और फिर अगर आप ये न्यूज में आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये डेली में आप देखोगे तो ये इधर से जब से आप बॉटम हुए हैं, कब से बॉटम हुए हैं आप देखो, ये दिस इज व्हाट समथिंग आई वांटेड टू टॉक, है ना, ये एकदम नई चीज है। अभी तक आपके पास डेटा इस फॉर्म में नहीं था ना। अब ये जैसे सारा जीरो है, मतलब सारा रेड है, सारे न्यूज रेड कैसे हो सकते हैं, सम ऑफ देम विल बी ग्रीन, राइट। तो इसमें डेटा में कहीं इशू होगा, राइट। जो एक्सचेंज ने डेटा दिया या ना, तो उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा या हमारी कैलकुलेशन पे प्रॉब्लम होगा, विल सी दैट। बट वो बहुत पुराना है, यू डोंट नीड इट, है ना, अभी यहाँ पे डिस्कशन के लिए है नहीं। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका न्यूज क्या हो रहा था, नीचे आने लगा था, राइट। बट ये जनवरी 29 के बाद से क्या हुआ, न्यूज जो है इंप्रूव होने लगा। एंड नाउ यू माइट से कि वो 3 फरवरी को क्या हुआ था कि आपको डील आ गई थी, राइट। डील, यूएस इंडिया ट्रेड डील का जो फ्रेमवर्क है उसका अनाउंसमेंट हो गया। बट एक बात आप गौर से देखो, आपका जो न्यूज है वो डेली टाइम फ्रेम में January 30 को ही बॉटम हो गया था, राइट। एक्चुअली January 29 को बॉटम हो गया था। रेड कितना परसेंट है, 70। ग्रीन कितना है, 22। उसके बाद देखो आप, ग्रीन कितना हो गया, 23। रेड कितना हो गया, 69, राइट। सो अगर आप, एक सेकेंड, ओके, हाँ, इसमें परसेंट मत परसेंट मत देखो, क्योंकि चलो ठीक है, परसेंट ही देख लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है उससे। क्योंकि वो जो निगेटिव क्रॉस ओवर है वो भी तो रेड ही एक्चुअली है ना, तो वो 69+2 हो जाएगा, राइट। और जो ग्रीन है और पॉजिटिव क्रॉस ओवर वो सेम ही है, तो 23+6 हो जाएगा ऐसा। परसेंट मत देखो ना अभी, बस आप विजुअलाइजेशन पे ध्यान दो। तो विजुअलाइजेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो January 29, है ना, उस दिन आपका बॉटम हुआ, राइट, मार्केट में। उसके बाद से आप ऊपर आ रहे थे, राइट। अब एक बात बताओ, ये 1 फरवरी को भी तो आप ऊपर गए थे, राइट। तो 1 फरवरी तक में अगर आप देखोगे तो 27.8%, राइट। इसमें अच्छा खासा सेगमेंट जो आपका क्या था, ग्रीन था। उसके बाद क्या होता है, फरवरी 2, है ना, उसके बाद थोड़ा सा डिप होता है, और फरवरी 3 को तो और डिप हो जाता है, राइट। तो ये जो फरवरी 3 की रैली थी, अब आप मुझे ये बताओ ये क्या था। वॉज इट एक्चुअली ब्रॉड बेस्ड, मार्केट में बहुत अच्छा एक मूवमेंट आया था, या एकदम से कुछ न्यूज बेस्ड, केवल सरफेस के लेवल पे आपको रैली दिखी थी मार्केट में। अगर आप ये देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि जो ब्रॉड बेस्ड रैली थी वो उसका सिग्नल नहीं था मार्केट में, राइट। ये जो रैली थी वो क्या थी, न्यूज बेस्ड। जो फ्रंट लाइन स्टॉक थे, है ना, जो हेडलाइन स्टॉक से उन्हीं में रैली, इसीलिए देखोगे तो 3 फरवरी को जबकि मार्केट अप, उसके बाद भी क्या हुआ है, और अच्छा खासा अप थी, क्या कब हुआ था, उसके बाद भी क्या हुआ है कि जो ग्रीन, टोटल न्यूज ग्रीन वाले स्टॉक्स थे वो क्या थे, परसेंटेज में घट गए। अब वो कितने हुए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बात ये कि ये कर्व क्या बता रहा है, जो ग्रीन वाला एरिया है वो क्या हुआ था, घट गया, राइट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे करके इंप्रूव होता गया, राइट। और ये फरवरी 13, 14, है ना, इस इधर एक बार पीक लगा, इसके बाद फिर एक बाउंस आया, फिर 19 को पीक लगा, और फिर आप नीचे आ गए, राइट। अब ये चीजें यहाँ से, अब ये मैं आप लोगों को, आप गौर से देखना, जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं लैक्स के, आप सबको याद होगा कि ये मार्च में, 2 मार्च को आपको न्यूज आती है ना, न्यूज आती है आपको 27 फरवरी को, बट उस दिन था सैटरडे, है ना, और फरवरी इस बार 28 की थी, तो आपको 28 फरवरी को था संडे। एक सेकेंड, ये तो गड़बड़ हो गया यार। 27 को अगर, तो 28 को आई थी क्या न्यूज, वॉर की न्यूज किस दिन आई थी, 28 को, राइट। ऐसा लग रहा है 28 को आई होगी, और फर्स्ट को रहा होगा संडे, और सेकंड को रहा होगा मंडे, या 2 मार्च, या मंडे को छुट्टी थी क्या किसी वजह से, बताओ, कैलेंडर ही नहीं याद है, कोई बात नहीं। बट सैटरडे था 28 को, राइट, 28 को न्यूज आई थी, ठीक है। तो 28 फरवरी को न्यूज आती है आपकी, और 1 मार्च को जो है संडे है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और 2 मार्च को आपको मार्केट खुलती है। 2 मार्च को क्या होता है मार्केट में, गैप डाउन। 2 मार्च को मार्केट में क्या होता है, गैप डाउन, ठीक है। गैप डाउन होता है, अच्छा खासा होता है, मार्केट गिरती है। उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से क्या होता है, मार्केट गिरती रहती है।
बट आप देखो ये डेली न्यूज के जो ग्रीन वाले स्टॉक्स है उसका 10% जो है घट रहा था या बढ़ रहा था? ये पहाड़ जो है ग्रीन वाला, ये एक्यूमुलेट होके बढ़ रहा था या घट रहा था? टाइप करके बताएं जरा आप लोग, क्या दिख रहा है आपको? ये ग्रीन वाला पोर्शन बढ़ रहा था या घट रहा था? बढ़े जा रहा था, राइट? लगातार बढ़े जा रहा था, है ना? ये आपको क्या बता रहा है? इसका बढ़ना क्या बता रहा है? क्या बढ़ना ये बता रहा है कि सूरज जी बोल रहे हैं इंक्रीज, राइट, एब्सोल्युटली राइट। इंक्रीज हो रहा था, राइट? ये जो ग्रीनरी है पहाड़ में, वो पोर्शन बड़ा होता जा रहा था। इट वॉज टेलिंग यू कि जो मार्केट है, इवन दो इट इज सीमिंगली गोइंग डाउन, आपको ऐसा दिख रहा है कि मार्केट गिर रही है, पर एक्चुअली क्या हो रहा है इंटरनली मार्केट के अंदर? उसकी हेल्थ जो है बहुत तेजी से इंप्रूव हो रही है। रेड वाला पोर्शन जो कि खतरे की निशानी है, वो घटते जा रहा है, और जो ग्रीन वाला पोर्शन है जो कि अच्छी बात है, वो बढ़ते जा रहा है। इसलिए मार्च में हम बोल रहे थे युद्ध हो रहा है, पर डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए। आपको अच्छे स्टॉक जिसमें ग्रोथ है, टेलविंड है, मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी बड़ी नहीं है अभी, और उसमें अच्छा खासा रनवे है, और जिसके चार्ट में कुछ खास आपको प्रॉब्लम नहीं दिखती है, ऐसे स्टॉक्स को आपको रखना चाहिए, उनको स्टडी करना चाहिए, उस पर आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के एलोकेशन के ऊपर काम करना चाहिए। और जब ये फियर काफी बढ़ गया मार्च में, जबकि हमारा न्यूज क्या हो रहा था, वो पहाड़ बढ़ाते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, राइट? और आप लोग डरते जा रहे हो। अब ये देखो, ये मैं आपको तब समझा नहीं पाया, वो मैं इसलिए नहीं समझा पाया क्योंकि तब अपने पास विजुअलाइजेशन फॉर्म में ये डेटा नहीं था। अभी है, आई कैन इजिली टेल यू। और अगर आज ये मैं आपको बात बोल दूं, और अगले 4-5 साल बाद कभी मान लो कोई फिर से सो के उठा एंड दे स्टार्टेड वॉर और व्हाटएवर, सम नॉनसेंस स्टार्टेड, राइट? उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो गया। अब मार्केट में आपको डर लग रहा है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा, म्यूचुअल फंड बेच दूं, म्यूचुअल फंड और ले लूं, या ऐसे ही रखूं, गोल्ड ले लूं बेच दूं और ऐसे ही रखूं। आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। मार्केट गिर रही है, फिर पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ स्टॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन डज नॉट मेक सेंस। ओके, सो अगर ऐसी सिचुएशन आती है फ्यूचर में, यू विल नॉट हैव टू आस्क एनीबॉडी। ये जो हमने लैक्स का प्लेटफॉर्म बनाया है, इसके प्लेटफॉर्म बनाने के पीछे लॉजिक क्या है? दिस इज द सिंपल लॉजिक। लैक्स इज बेसिकली डेटा एनालिटिक्स, राइट? एनालिटिक्स का प्लेटफॉर्म है, ठीक है? इट्स दैट इट इज मार्केट एनालिटिक्स, है ना? So, ये मार्केट एनालिटिक्स का प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको लर्निंग करनी पड़ेगी ना। अ टूल इज ओनली एज गुड एज द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जीक्यूशन स्किल, राइट? सो अगर यूजर जो है उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी टूल, और वो उसको अंडरस्टैंडिंग है भी अगर, और उसको यूज नहीं कर पा रहा, तो फिर वो टूल कितना अच्छा है खराब है उस बात से उतना फर्क नहीं पड़ेगा ना। आपको फेरारी दे दी गई, अभी भाई फेरारी में कौन सा बटन कहाँ है, क्या दबाने से क्या होता है, इफ यू आर नॉट फेमिलियर, यू लूज द रेस, राइट? हो सकता है एक बाइक वाला, बाइक कौन सी आती है सबसे सस्ती, आई एम फॉरगेटिंग, बट एनीवे हीरो की आती होगी, तो बिकॉज दे आर मास मार्केट, राइट? हीरो की सीडी डीलक्स ऐसे ऐसे करके कुछ बाइक आती है, राइट? सो डीलक्स मान लेते हैं ना, वो सबसे सस्ती मान लेते हैं, वही बाइक आती है, हो सकता है कोई और आती है, पार्डन मी फॉर दैट इफ आई एम रॉन्ग। मान लो आपके पास सीडी डीलक्स है, ठीक है, हीरो होंडा की, आपने उसमें पेट्रोल भराया, और आप कह रहे हो चलो भाई रेस होगी, ठीक है? और आपका एक दोस्त है, उसने जीवन में कभी कोई कार चलाई नहीं है, उसको जो है फेरारी मिल गई, अब यू थिंक ही इज गोइंग टू विन द रेस? ही इज नॉट। यू विल विन द रेस, राइट? हाँ, अगर मान लो 5-10 मीटर 100 मीटर की बात है, तो हो सकता है आपका दोस्त गलती से जीत जाए, क्यों? उसको पता नहीं है, लेकिन अभी वो बटन वटन जो दबा रहा है उससे कुछ फेवरेबल काम हो रहा है, तो ही इज अहेड ऑफ यू, है ना? एंड यू आर नॉट एबल टू बीट, ऐसा हो सकता है। बट अगर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रेस हो, ही इज अनलाइकली टू विन, यू आर गोइंग टू विन। सीडी डिलक्स है फिर भी जीत गया, क्यों? आपको समझ है कि सीडी डिलक्स में कहाँ गियर है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ एक्सेलरेटर है, क्या करना है, नहीं कर पता है, चला लेंगे, राइट? और वो फेरारी वाले को कार चलाने ही नहीं आता, फेरारी तो छोड़ दो, वो क्या करेगा उसका? हाँ, लेकिन अगर आप बहुत समय दे दोगे ना, तो उसमें भी रिस्क है। फेरारी वाला फिर समझ बढ़ाएगा, कैसे चलाना है ये भी सीखेगा, और फिर तो आप पीछे कर ही नहीं पाओगे। अगर फेरारी चलाने जिसको आता है, उसको फेरारी दे दी, तो उसको फिर बीट करने कोई तरीका नहीं, तब तो फेरारी ही चाहिए, या उससे और अच्छी कार चाहिए, राइट? सेम इज ट्रू विद द लैक्स। आपको लैक्स है, मिल गया है, आपने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है, आप काम कर रहे हो उसके साथ, एग्जीक्यूट कर रहे हो, आगे चीजें आपके साथ अच्छी होंगी। अब अगर आपको कोई और बीट करना चाहता है, वो तभी हो सकता है जब उसके पास लैक्स हो, और उसके पास आपसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि लैक्स से बेहतर प्लेटफॉर्म तो नहीं है।
So like you already have the Ferrari, right? अब अगला जो है फेरारी चलाना आपसे अच्छा जान गया तो अलग बात है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू विन, राइट? सो लैक्स हमने बना दिया है, उसमें और इंप्रूवमेंट आ रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, अगले 3 महीने के अंदर जो हम अपडेट्स लाएंगे दे विल बी सिंपली माइंड बॉगलिंग। जो जो भी अभी तक आपने देखा है, दे विल फार आउटपेस वॉट एवर यू हैव सीन, ठीक है? एंड वी आर नॉट डन, ठीक है? ये आपको लगता होगा कि अभी तो बहुत चीजें आ गई, ट्रू, वो तो हमें भी लगता है कि काफी चीजें आ गई जो पहले मतलब कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो जब स्टार्ट किया था वहां से बहुत चीजें आ गई। बट बिलीव मी, देयर इज अ लॉट मोर इन द स्टोर दैट इज कमिंग। इट इज जस्ट लोडिंग, अभी लोड हो रहा है, आएगा, बहुत सारा आएगा ना। और विल मेक इट ट्रूली कॉम्प्रिहेंसिव, ट्रूली प्रॉपर। अरे कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ये नहीं होता कहीं से भी कूड़ा कचरा कुछ भी कहीं दिखा उसको भी उठा इधर डाल दिया। सब कुछ अगर कहीं उठाया और डाल दिया तो फिर तो सब गार्बेज टाइप का कलेक्शन हो जाएगा, नथिंग मेक सेंस, राइट? तो अगर आपको खाद बनानी है और कुछ सड़ाना है, तो अब चाहे जो खाना कुछ भी खराब है नहीं है और कहाँ का है क्या है, नॉनवेज है वेज है, कोई मतलब ही नहीं है यार, सब कुछ डाल दो, सड़ाना ही तो है, बाद में खादी तो बननी है, राइट? लेकिन अगर उस खाने को खाना है तो फिर वी नीड टू सेपरेट एंड लाइक्स डिसलाइक्स, कितना मसाला कितना तेल कितना नमक कितना कुछ, राइट? सब कुछ प्रोपोर्शन देखना पड़ता है, राइट? सो लैक्स इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू मेक इट बेटर एवरी डे, राइट? चलो जी, अब ये अगर आप देखोगे, ये आपको क्या बता रहा था, देखो एकदम साफ साफ आपको बता रहा था, राइट, कि जो आपकी मार्केट है वो ट्रूली बॉटम किस दिन हो गई? 29 जनवरी। जनवरी 29 को बॉटम हो गई। अब आप मुझे ये बताओ, दुनिया में कोई और प्लेटफॉर्म है जिसके पास ऑब्जेक्टिव तरीका हो जहां से आपने देखा हो कि भाई आपको इतनी अर्ली इंडिकेशन पता चल गया हो कि मार्केट बॉटम हो गई? कहीं आपने देखा है? नहीं। किसी और एक्सपर्ट ने आपको बताया कि जी हमने स्टडी किया है ना, और कुछ भी है ना, कोई भी तरीका उनका, इलियट, हार्मोनिक्स, एस्ट्रो, कोई भी तरीका हो ना, ग्रह आते हैं उनको, नक्षत्र आता हो, कुछ भी आता हो, किसी ने बताया था जनवरी एंड में कि भाई बॉटम हो गया? मीनवाइल देयर इज अ गुड न्यूज, कुछ गुड न्यूज हुई अभी अभी, देखो आप लोग, दिखा आपको कुछ गुड न्यूज? अभी आपको दिख जाएगा, लेट मी जस्ट रिफ्रेश, क्योंकि अभी अभी किस चीज का मैसेज आया? स्क्रीनर अपडेट। अपडेट हो गया डेटा, 15 मई 2026 का डेटा आ गया, विच इज गुड। बस इसमें आपको एक जो है मुझसे एक आपको प्रॉमिस करना है, एक प्रतिज्ञा लेनी, कि डेली हम जो है कम से कम 15-20 मिनट, 15 मिनट कम से कम क्या करेंगे? डेली आप 15 मिनट क्या करेंगे? लैक्स को देंगे, ठीक है? अगर आप डेली 15 मिनट लैक्स को देंगे तो काम अच्छा हो जाएगा। अब देखो, आज तो एकदम सूर्य देवता कहाँ से निकल आए हैं, किस दिशा से? देखो, पश्चिम से निकला है। ये पश्चिम नहीं, ये कोई 5वीं दिशा है ना? ये सिर्फ पश्चिम नहीं है, 5वीं दिशा आ गई, राइट? पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, मोदी जी खुद ही हाहाकार मोड में चल रहे हैं आजकल, राइट? किसी दिन बोलते हैं मित्रों सोना नहीं खरीदना है, पेट्रोल डीजल बचाना है, क्या हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं क्या? सोचना चाहिए, और पता नहीं क्या क्या, राइट? फिर अगले दिन क्या हुआ? सोना चांदी के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, ड्यूटी 6% और बढ़ गया, चलो। उसके बाद क्या हुआ? नाउ दे आर टॉकिंग कि जो फॉरेन लोग घूमने जाते हैं, किसी भी वजह से जाते हैं, कोई मतलब नहीं, घूमने जाना है, खर्च करना है, आने जाने में खर्च होगा, वो सबके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे ताकि आप बाहर जो है घूमो ना। वो ये चाह रहे हैं कि भाई जो डॉलर का डिमांड है इंडियंस के द्वारा, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं ताकि यूएसडी आईएनआर जो है आपका, जो जिस तरीके से वीक हो रहा है उतनी तरीके से वीक ना हो। तो ये तो वही बात हो गई कि आपके पास एक बाल्टी है, उसमें छेद है और उसमें कुछ पानी है, तो पानी क्या होगा? टपक टपक करके निकलेगा, राइट, छेद से। वही हो रहा है भारत के साथ, टपक टपक करके पानी निकल रहा है बाल्टी से। मोदी जी क्या ट्राई कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं, उसमें हाथ लगा रहे हैं ना, कभी कुछ लगा रहे हैं ना कि भाई पानी ना गिरे। सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि भाई जिससे बाल्टी बनवाए हो उसको 2 थप्पड़ मारो और बोलो दूसरी बाल्टी दो जिसमें छेद नहीं होना चाहिए। ये छेद क्या है? हाई टैक्स, स्टूपिड रेगुलेशंस, है ना, आए दिन पॉलिसी में चेंज होता है, ठीक है? और फिर चौथा, बाबू डॉम करप्शन, राइट? ये 4-5 चीजें हैं जो आपको फिक्स करनी पड़ेगी। एंड रिस्पेक्ट द मेरिट, कोई अच्छा इंसान अच्छा काम कर रहा हो उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, रिस्क कैपिटल को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये 5-6 चीजें आपको करनी पड़ेगी। ये आप करोगे तो जो छेद है आपके बाल्टी में नीचे,
कुछ छोटे कुछ बड़े, वो क्या हो जाएंगे, गायब। अभी आप चाहे जितना करते रहो, चाहे जितनी मेहनत से उसमें पानी डालो, क्या होगा, छिदही बाल्टी से पानी सब बह जाएगा। विच इज वॉट इज हैपनिंग टू इंडिया। ड्रेन ड्रेन कैपिटल ड्रेन, सब कुछ ड्रेन हो रहा है, राइट। दिमाग भी ड्रेन होते जा रहा है। सो वी नीड दैट। अब उसके लिए हमको क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, हमको चाहिए ये जो आपका, ये जो आपका पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो इंप्रूव हो जाए। लेकिन अब वो नहीं हो रही, कोई बात नहीं। लेकिन हमको यूएसडी आईएनआर स्ट्रांग चाहिए ना। इसके लिए हमको चाहिए कि पीपल आर ब्रिंगिंग डॉलर्स टू इंडिया, राइट। दे आर नॉट, दे आर नॉट ट्राइंग टू टेक आउट मोर डॉलर्स, राइट। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफआईआईज अगर 1300 करोड़ का बाइंग कर रहे हैं, तो ये डॉलर लाना है ना। दिस इज गुड न्यूज, है ना। सो मोदी जी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो एक अलग बात है। बट अगर ध्यान दे देंगे तो अच्छा काम हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, ये देखो आप, लूज ग्रीन वाले है ना, और ये सब जो डेटा है वो तो खैर कोई बात नहीं, वो बार बार क्या चर्चा करना उसकी, राइट। इसमें कुछ बदला होगा क्या, लेट मी सी। हाँ देखो भाई, डिफेंस जो है गिर गया होगा ना आज। इस चक्कर में डिफेंस जो है बेचारा ऊपर से नीचे आ गया। अभी फार्मा मेटल केमिकल आ गए ऊपर, राइट। खैर ये चलता रहता है, दैट इज वाई दिस एनालिसिस है ना, तो आपको रेगुलर करनी पड़ती है। हम आ जाते हैं अपने इस पे। तो न्यूज आपको, आप खुद ही बताओ, जनवरी के एंड में भारत में कितने प्लेटफॉर्म्स थे जिनके पास ऐसा कोई डेटा मेट्रिक कोई उन्होंने डिजाइन किया है जो आपको बता सके आसानी से कि भाई इंडिया की मार्केट जो है बॉटम हो रही है या टॉप हो रही है कोई तरीका कहीं देखा आपने? नहीं देखा, राइट। सो ये आपको एकदम, और ये तो ऐसा डेटा है कि मतलब ये तो आप जो है 10 साल के बच्चे को समझा सकते हैं। एक बार समझा देंगे कि बेटा ये अगर ग्रीन वाला है, अगर ये कम होते जा रहा है, ये बुरी बात है, दिक्कत की बात है हमारे लिए, है ना। और जब गिरते गिरते अगर वो बाउंस करने लगे, तो फिर वहां से है कि हाँ भैया अब चीजें जो है इंप्रूव हो रही है, राइट। खासतौर से जब बाकी मार्केट में हाहाकार लग रहा हो, जबकि ग्रीन वाला पोर्शन जो है बड़ा होता जा रहा है, राइट। तो ये हमने देखा इधर। और मान लेते हैं कि किसी ने प्लेटफॉर्म में इसलिए नहीं बताया, बनाया नहीं, क्योंकि नहीं तो उनका सीक्रेट बाहर आ जाएगा, राइट। सो लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली अंडरस्टैंड मार्केट वेरी डीपली, और वो जो करते हैं वो कभी बताते ही नहीं है किसी को, बिकॉज दे डू नॉट वांट देयर सीक्रेट रेसिपी टू कम आउट इन पब्लिक। तो पहले तो वो पब्लिक आते नहीं है, कभी आते भी हैं तो कुछ और ही बता के चले जाते हैं ना। म्यूचुअल फंड सही है, लॉन्ग टर्म करो, ब्लू चिप स्टॉक बाय करो, या कुछ कुछ ऐसा ही कुछ ज्ञान बता के चले गए। Some new, messiahs have propped up. They start talking, all the time global investing. आज के डेट में जो भी इंसान ग्लोबल इन्वेस्टिंग की बात कर रहा है ना, वो आपका दोस्त नहीं है। ये लैक्स में 4 दिन 2 दिन पहले वी वुड हैव ट्वीटेड, ठीक है। ये हमारा पब्लिक पोजीशन है। जो भी इंसान आज के डेट में आपको प्रमोट कर रहा है ना ग्लोबल इन्वेस्टिंग, ही इज नॉट योर फ्रेंड, एंड यू रियलाइज दिस। 1 साल के अंदर आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि भाई ये तो हमारे दोस्त थे ही, हमारा तो काम हो गया। एंड व्हेन आई से दोस्त, आई डोंट लिटरली मीन कि आपके दोस्त बोल रहे हैं आपको ग्लोबल इन्वेस्टिंग करना। व्हाट आई मीन इज व्हाटएवर यू थिंक, एक्सपर्ट दिस दैट, है ना। तो जो लोग भी पॉडकास्ट या ट्विटर में आके बोल रहे हैं ना ग्लोबल इन्वेस्टिंग दिस दैट, है ना, उनसे दूर रहना। बहुत ही गलत समय पे आपको टेम्पटेशन हो जाएगी, नहीं, ठीक है। अभी ये आप देखो, ये लगातार मार्केट क्या हो रही है, इंप्रूव होती गई है, राइट। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो मई 13 के बाद से थोड़ा सा, है ना, 2 दिन में 14-15 को थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस दिख रही है। चलो अब यही काम डेली के बाद हम वीकली में कर लेते हैं, राइट। वीकली में अगर आप देखोगे तो वीकली में जो है, अब यहाँ से आपको एग्जैक्ट परसेंट देखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये कर्व काफी, अच्छा एक और काम भी तो कर सकता है, ऐसे कर लो। सब कुछ तो बनवा दिया गया है ना, बस आपको यूज करना है, राइट। देखो ये हमने क्या किया, हमने किया ये कि ये 2025 का दिसंबर का डेटा बचा लिया, और ये 26 का, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गिरते गिरते किस दिन ग्रीन वाला जो है बॉटम हो गया था, कहाँ पे बॉटम, यही जनवरी 27 के आसपास में ये बॉटम हो गया था, राइट। उसका से वीकली भी बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, डेली विल गिव यू सिग्नल फर्स्ट, राइट, वीकली में थोड़ा देर लगेगा, राइट। मंथली में तो काफी देर लगती है चीजें बदलने में। अब इसमें उतना डेटा नहीं है कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, है ना, क्योंकि मंथली में तो बहुत ही धीरे होता है काम। सिमिलर इंटरप्रिटेशन यू कैन अप्लाई टू बीएनएफ, है ना। ये अभी हम नहीं करेंगे, बाद में, ठीक है ना, ठीक है।
और ये हाहाकार इंडिकेटर तो हमने आपको बताई है। जब ये आग की लपटें लाल वाली एकदम हाई पे चल रही, उस समय आपको मार्केट में क्या सोचना है? डरना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि इस मार्केट में सिर्फ दो ही सच है, और दोनों क्या है? एम से स्टार्ट होते हैं। एक क्या होता है? मोमेंटम। दूसरा क्या होता है? मीन रिवर्सल। मोमेंटम मतलब होता है जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, कंटिन्यूएशन। और मीन रिवर्जन मतलब क्या होता है? रिवर्सल। जैसा चल रहा था अब उसका उल्टा होगा। तो जब हम ये हाहाकार की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा होता है? मोमेंटम या मीन रिवर्सल? प्लीज अनम्यूट करके बोलिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में जाएगा। आप टाइप करते हो तो वो जाता नहीं है ना, तो मतलब बाद में जो मीन लोग भी रिवर्जन। देखेंगे। मीन रिवर्जन, राइट। तो ये जब हम बात करें ना हाहाकार इंडिकेटर पे, कि जब ये लाल लपटें ज्यादा एकदम उठ रही हो, हम यहाँ पे मीन रिवर्जन पे बैठ कर इसका। अच्छा, मीन रिवर्जन को अगर हम आसान भाषा में बात करें, छोटे बच्चे को बताएं, तो क्या बताएंगे? कि बेटा लोग बोल रहे हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए सबके भाव क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं ना, लोग बेच के जा रहे हैं। और अब हमको ऐसा लग रहा है कि दुनिया कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि ह्यूमन स्पिरिट है, लोग जीते हैं, कुछ ना कुछ नया निकालते हैं, है ना। और दुनिया जो है पहले से क्या होती है? बेहतर होती है, राइट। अब वो बीच में थोड़ी गड़बड़ होती है, पहले फिर बेहतर होती है इवेंचुअली, राइट। सो ये है। तो आपका बच्चा सही चीज सुन रहा है या गलत इनसाइट सुन रहा है? क्या लगता है आपको? सही से सही। है ना। लेकिन उसको एक और चीज बताना पड़ेगा कि बेटा ये हम आज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसके परिणाम हमको कल मिलेंगे। इसके परिणाम मिलने में हमें हो सकता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाए। तो 1 से 3 साल का व्यू लेके चलना है। कितना? एटलीस्ट 1 ईयर, और ज्यादा 2-3 साल। हाँ, तो 1 से 3 साल का व्यू लेके चल रहा है। क्योंकि जब भी आप मीन रिवर्जन पे बेट कर रहे हो, क्योंकि इवेंचुअली तो अगर गाड़ी को किसी दिशा में जाना है, अभी अगर गाड़ी उसके उल्टा चल रही है तो गाड़ी पहले स्लो करेगी, रुकेगी, फिर टर्न होगी, फिर जिस दिशा में जाना उधर स्टार्ट करेगी, फिर एक्सेलरेट करेगी, ऐसा होगा, राइट। तो अभी तो उल्टी दिशा में गाड़ी चल रही है, हम वहीं पे बेट लगा रहे हैं, राइट, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ लाइक गुड बार्गेन, राइट। याद है कि अरे वो एकदम एग्जैक्ट रिवर्सल मिल जाए, क्योंकि रिवर्सल में प्रॉब्लम क्या है? एनीबडी यू कैन टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद रिवर्सल? कि लोग बोलते हैं ना कि कंफर्मेशन चाहिए फिर बाय करेंगे, थोड़ा मार्केट रिवर्स करें फिर बाय करेंगे। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? आप लोगों ने भी फेस किया होगा, क्या होती है प्रॉब्लम इसमें? होती ये है कि भाई मार्केट जिस दिन रिवर्स करती है उस दिन आपको इन्विटेशन तो देगी नहीं। उसके 3 दिन बाद मार्केट कितने परसेंट अप हो जाएगी? 4-5%। जो आपके स्टॉक है वो कितने परसेंट अप हो जाएंगे? 20%। और जो बहुत अच्छा स्टॉक है जिनको आपको वाकई में बाई करना था वो 30% अप हो जाएंगे। आप बाई करोगे 30% ऊपर, जबकि आपका दिमाग बार बार बोल रहा है भाई ये जो 70 पे खरीद रहे हो ना, ये 55 पे था 3 दिन पहले। तो आपका दिमाग ये नहीं प्ले करेगा कि यार 55 पे बाई करना था या 70 पे बाई करना है। आपका दिमाग बोलेगा ना कि यार 55 पे बाई, मतलब 70 पे क्यों बाई कर रहे हो? और फिर आपके अंदर अगर मान लो आपने थोड़ी हिम्मत की, यार कर लेता हूँ, अच्छा स्टॉक है, ग्रोथ है, टेलविंड है, वगैरह वगैरह, राइट, चार्ट बेस है, सब कुछ सही है, राइट, आई बाइट, रिस्क भी कंट्रोल्ड है। लेकिन फिर आपका दिमाग पता है क्या बोलेगा? बोलेगा यार अब ये 55 से आया है अभी, अब हो सकता है कि अभी गिर जाए तो 60 का हो जाए तो अगर 70 पे बाई करोगे तो यू विल गेट लेस क्वांटिटी, 60 पे बाई करोगे तो ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा। ऊपर से 70 पे बाई करोगे तो लॉस भी झेलना पड़ेगा, दिखेगा स्क्रीन पे लॉस। 60 पे बाई करोगे तो लॉस होएगा नहीं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है, कैसे पता कि वो 60 जाएगा? और जब 60 जाएगा, अगर मान लो आ गया 60 की स्क्रीन पे किसी कारण से, आप विल यू बी एबल टू बाय? बिना किसी न्यूज के तो आएगा नहीं 60 वहां पे, या तो कोई ग्लोबल न्यूज खराब आएगी, फिर आप वही गाना गाने लगोगे कि अभी और वेट करते हैं। या हो सकता है कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है तब आएगा 60, तब भी नहीं बाई करोगे। आपको तो बाई वैसे भी नहीं करना है ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि यू लैक प्रोसेस। प्रोसेस नहीं है आपके पास, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दैट इज व्हाई यू आर मेकिंग दिस मिस्टेक, ओके। सो आपको अगर ऐसी ये जो रिवर्सल में कंफर्मेशन का बीमारी है, जैसे अभी आप देखो 3 दिन से मार्केट खराब है, कोई बात नहीं, बट 3 दिन से मार्केट खराब है, लेकिन अगर आप 30 मार्च को देखोगे तो 30 मार्च से अभी तक मार्केट कितनी आप है? आपने अगर डिसेंट पोर्टफोलियो बनाया तो 20% आप है कि नहीं? 20% आपका पोर्टफोलियो है। अब क्या करोगे आप बताओ? अब जिसके पास कैश है विल ही बी एबल टू डिप्लॉय? 20% आया, 100 रुपए का सामान 120 पे लेगा वो? जब 100 में लेने में वो डर रहा था, 120 में कहां से ले लेगा? जब 100 में वो डर रहा था कि 80 ना हो जाए कहीं, या 90 ना हो जाए, तो 100 से अगर 90 होता तो कितने परसेंट का फॉल है? हाँ जी बताओ, 100 से अगर 90 हो जाए तो कितने परसेंट का फॉल है? 10%। 10%। और अगर 120 से 90 हो जाए, क्योंकि अभी तो उसका दिमाग वैसे ही एंकर्ड है ना,
अब कितना फॉल हो जाएगा? 30%। 25। 120 अगर 90 जाओगे तो एक्चुअली 30 से थोड़ा कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप बेस बड़ा कर रहे हो, राइट? 25 होगा ना? हाँ 25, यस, आई आई हर्ड एक्चुअली 36, सॉरी। तो 25% का फॉल, तो भाई जो इंसान 10% में डर रहा था, डू यू थिंक ही विल बी एबल टू बाई 25% का फॉल जब उसको लग रहा हो? नहीं, राइट? ही विल बी इवन मोर स्कैर्ड, उससे छूट क्या गिराएगी। और आप में से कितने सारे लोगों ने ये सब होते हुए देखा है रियल टाइम में? कोविड में देखा है ना, यही हुआ था ना। मार्केट किस दिन बॉटम हुई थी कोविड में? जिस एग्जैक्ट दिन सेम डे 23rd मार्च। हाँ, जिस दिन लॉकडाउन लगा था, जनता क्या बोलने लगी, दुनिया ने कभी लॉकडाउन नहीं देखा, अभी तो सब बिजनेस ठप हो गया है, प्रॉफिट की तो बात ही मत करो, सेल्स ही नहीं हो रही है, प्रॉफिट कहां से होगी, कॉस्ट अभी भी है। बट गेस व्हाट, मार्केट केप्ट रैलिंग, राइट? उसमें जो 1.5 लोग थे जो एक्चुअली मार्केट एक्सपर्ट थे, इवन दे लेफ्ट, दे कुड नॉट एक्चुअली कैपिटलाइज ऑन दैट। ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स थे, इवन दे वर नॉट एबल टू कैपिटलाइज। अब फंड मैनेजर्स की बात मत करना, क्योंकि फंड मैनेजर का काम अलग है। उनको क्या करना है ना, उनको तो पैसा इकट्ठा करना है लोगों से। तो पैसा इकट्ठा करने में क्या होता है, यू आर जस्ट टॉकिंग पॉजिटिव थिंग्स, राइट? है कि नहीं? तो वो तो अलग बात है, लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फंड मैनेजर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जो लोग खुद का करते हैं या वैसे टाइप का प्राइवेट टाइप का सेटअप है। दे ऑल्सो हैड हार्ड टाइम। देयर वर वेरी फ्यू, वन लेट मिस्टर राकेश झुंझुनवाला जी, राइट? he actually came on the TV, he thumped the table, he said अभी नहीं बाई करोगे तो कब बाई करोगे? पता चला इंटरव्यू, मीडिया इंटरव्यू चल रहा है उनका, राइट? कोविड टाइम में, राइट? बात करते करते उधर फोन बीच में लिया और उधर ऑर्डर लगा दिया भाई, ठीक है, बाइंग हो गया कुछ। अब जानते ही हो उनकी बाइंग जो है कुछ करोड़ करोड़ से ऊपर होती है, राइट? बिकॉज ये सच अ बिग पोर्टफोलियो टू लुक आफ्टर, राइट? The same thing he actually shared. नहीं, I don't know. I mean, he did not share. मधुसूदन केला जी एक्चुअली शेयर किए ना, राकेश भैया को मैं बता रहा था कि ये स्टॉक है, इसमें ऐसा ऐसा है ना, मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो बोले हाँ ठीक है सही बोल रहा है। और जब तक उधर ठीक है सही बोल रहा है, तब तक इधर उन्होंने ऑर्डर कर दिया, भाई बाय कर लो। सर, ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। डू यू थिंक कि वो वहां पे बैलेंस शीट पढ़ रहे थे, फॉरेंसिक कर रहे थे बैठ के? ना भाई, फोन पे बात कर रहे थे यार, सामने वाले ने आइडिया दिया, ही ऑल्सो थिंक्स कि ठीक है। ऑब्वियस बात है, उनके सामने स्क्रीन चल रही होगी, उन्होंने पढ़ाई किया होगा। एंड लेट मी टेल यू, राकेश झुनझुनवाला जी की असामयिक मृत्यु हुई, जल्दी चले गए दुनिया से, बहुत जल्दी चले गए, 55 56 के आसपास में, राइट? डायबिटीज था उनको। अब वो ऑब्वियस बात है, डायबिटीज बहुत खतरनाक है, आप जानते हो, वो सारे अंगों को खा जाती है शरीर के। अब वो एडमिट रहे होंगे काफी दिन बिफोर ही एक्चुअली डाइड, राइट? वो एडमिट भी थे। अब एडमिट रहे होंगे तो डू यू थिंक कि he would have been able to keep himself away from market? No, मुझे ये पता नहीं है, बट आई कैन टेल यू फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्सनैलिटी कि उनके सामने टीवी रहा होगा। टीवी मतलब मॉनिटर, नॉट टीवी, टीवी, ठीक है? और उसमें ब्लूमबर्ग टर्मिनल खुला रहा हो, एंड ही वुड हैव बीन जस्ट लुकिंग आफ्टर कि यार कहाँ क्या चल रहा है। वहां कुछ करना नहीं है, ठीक है? बिकॉज ही लिव्ड मार्केट, ही वाज द मैन ऑफ द मार्केट, ठीक है? मार्केट के लिए ही थे वो, है ना? सो ऐसे टाइप के लोग, अब उनको ऑब्वियस बात है नॉलेज है बहुत सारी, तो किसी ने आइडिया दिया उसको इवेल्युएट करने में ज्यादा देर नहीं लगता। बट ये अगर आप लेकिन सोचो कि सिर्फ उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इसी वजह से उन्होंने इतनी जल्दी बाय कर लिया, अब चूंकि मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं तो कर नहीं पाऊंगा, ये गलत है। ये पर्सनैलिटी की भी बात होती है। केवल वही नहीं है मार्केट में जो पिछले 40 साल से हैं, 40 साल से इंडिया के मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। आपको क्या लगता है वो सारे लोग बहुत रईस हो गए हैं? नहीं, ये सारे लोग बस वही फास्ट मेकिंग डिसीजन मेकिंग पावर है? नहीं। आपको क्या लगता है सब उन सारे लोगों को कोई भी कोई आइडिया बताएगा तो वो बात करते करते 1 मिनट में ही बाई कर लेंगे? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाइंग हंड्रेड्स ऑफ करोड़, क्योंकि वो तो है नहीं ना। आई एम सेइंग कि लेट्स से व्हाटएवर मनी दे हैव, क्या अपने जो भी नेटवर्थ है उसका कोई ठीक ठाक पोर्शन वो खरीद सकते हैं कोई स्टॉक? क्योंकि कोई बता रहा है नहीं करेंगे, क्योंकि उनका पर्सनैलिटी टाइप अलग है। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। आपको वो ट्रेन करना पड़ता है ना? उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्रोसेस चाहिए, राइट? कि कोई कुछ बोलेगा ठीक है, वो अपने हिसाब से बोल रहा है। जैसे उस केस में मधुसूदन केला जी ने वो एक आइडिया उनको बताया, राइट? अब मधुसूदन केला जी का देखने का नजरिया तो अलग होगा, राकेश झुनझुनवाला जी का अलग रहा होगा, बट ही स्टिल, उन्होंने बताया, सुनी उनकी बात, उधर अपने हिसाब से देखा और ठीक लगा, चलो ठीक है भाई कर, ये समझ लो।
ये आपको भी ट्रेन करना है। इसका मतलब ये नहीं कि कल से जाके एकदम कहीं से कुछ दिखे ट्विटर में जाके बाई कर लेना ना। व्हाट आई एम सेइंग इज प्रोसेस बनाओ, उसके हिसाब से एनालाइज करो, फिर बाई सेल जो भी करना है करो। अब देखो ये डिस्टैक, देखो डिस्टैक ने आपको कितना ब्यूटीफुली बता दिया था। सबसे जो हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन था किस तारीख को था, मार्च 27। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कब था, नेक्स्ट डे, राइट। सो यहाँ पे आपको ये मार्च 27 और मार्च 30 ये दोनों दिन सब, मतलब अब इससे ज्यादा सिग्नल क्या मिलेंगे। लूस का जो ब्रेड्थ का एनालिसिस था वो आपको ऑलरेडी बता रहा था कि जो इंटरनल से मार्केट को वो इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। हाहाकार जो आपको बता रहा था वो आपको ये बता रहा था कि जो मार्केट में पेसिमिज्म है इट इज एट द पीक, ठीक है। लूस आपको बता रहा है इंटरनली मार्केट इज इंप्रूविंग। हाहाकार आपको बता रहा है कि जो डर है ना वो एकदम व्याप्त है। और जो डिस्ट्रैक्ट है वो आपको बता रहा है कि जो स्मार्ट मनी है इट इज पुलिंग द ट्रिगर बाइंग। सो तीनों अलाइन हो गया कि नहीं। इंटरनली मार्केट इज इंप्रूविंग, बाहर वाले लोग बहुत डरे हुए हैं, ठीक है। और जो स्मार्ट मनी है, जो बड़ा पैसा मार्केट में, वो बाइंग कर रहा है। आपको पता है मार्केट किसकी वजह से मूव होता है। वो पान वाला जब 10 शेयर बाई करता है तब मूव होता है क्या ना। इट इज द बिग मनी दैट मूव्स द मार्केट, राइट। क्योंकि वो जब चलते हैं तो वो जैसे देवराज इंद्र का जो वाहन था क्या है ना। तो देवराज इंद्र का वाहन क्या है भाई बताओ। हाथी है ना, वो कौन सा है, क्या नाम है उसका, कोई जानता है। आप एरावत। एरावत, राइट। सो एरावत जब चलता है तो भाई हिलता है, क्या करें हम भाई, इतना भारी पैर ही है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे स्मार्ट मनी बिग मनी होता है। जब वो चलते हैं तो मार्केट क्या होती है, हिलती है, कंपन होता है, चाहे थोड़े समय के लिए, राइट। सो तीनों सिग्नल थे यार। डिड यू अंडरस्टैंड इट और नॉट, कि कैसे यूज करना है। अब देखो ये नया इन्होंने डाल दिया अभी, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में आजकल क्या चल रहा है, राइट, है ना। तो आप देखोगे तो फ्रेश जो है एक्सपोजर 7,500 करोड़ का बनाया लोगों ने, और क्लोज कितना किया 6,000 करोड़ का ना, नेट में 1,500 करोड़ मार्जिन ट्रेडिंग में ऐड किया है, ठीक है। बाकी देखो इस पे मैंने अभी तक खुद ही दिमाग नहीं लगाया, तो आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू मच मोर, है ना। बाकी डेटा डेटा होता है, आप लोग खुद ही पढ़ोगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोग मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो, एंड यू गाइस विल बी एबल टू टेल अस, है ना, टेल मी ऑल्सो, है ना, कि क्या होता है क्यों होता है। एंड आप लोग को एक्सप्लोर करना चाहिए। लैक्स का टेलीग्राम है, ट्विटर है, यू टैग मी देयर, है ना, टैग अस, विल टॉक डिस्कस। आप लोग बहुत सारी नई चीजें निकाल सकते हो सेम डेटा से। व्हाई, बिकॉज सी अपने पास भी 24 ही घंटा है ना, उसी में नहाना धोना खाना सोना, काम करना, पढ़ना, पढ़ाना, है ना, मार्केट देखना, मार्केट दिखाना, सब कुछ करना पड़ता है, राइट। सो ये आपको, मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि यार इन्होंने बनाया तो इनको सब आता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बहुत चीज बना के डाल दिया, वो ठीक से हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया ना। तो अभी आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा कुछ नया, राइट। तो वो टाइम लगेगा, राइट। सो इसमें कोई ये बात नहीं है कि नहीं नहीं इन्होंने बनाया तो नहीं आता हो। और देखो ये भी आपको बता रहा था, फियर एकदम, मतलब क्या चल रहा था आसमान पे, राइट। ये देखो ऐसा पीक तो इधर भी कहीं नहीं बना था, ऐसा बन रहा था, राइट। आई होप इट इज क्लियर हाउ डू यू चेक द वेदर। और अगर ये कॉल आपकी सही चली गई ना, उसके बाद काम बहुत आसान है। सबसे बड़ी कॉल होती है मार्केट साइकिल। जिसको मार्केट साइकिल समझ में आता है ना, उसका काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ये एरिया आपका इनसाइडर डील्स में जाके आप देखा करो यार, कौन सी कंपनीज है, कहाँ बाइंग वाइंग चल रही। अब ये इंटर से ट्रांसफर से मुझे कोई मतलब नहीं है। आई एक्चुअली वांट ओनली बॉट। क्या चाहिए मुझे, बॉट, ठीक है। चलो प्लेज रिलीज्ड भी देख लेते हैं ना। अब एक बात तो है, HCL टेक्नोलॉजी, यार ये तो अलग है ना, लाइक डोंट बॉदर टू मच अबाउट इट, ओके। एनआरबी बेरिंग ये जो है इंटरेस्टिंग चीज है कि इन्होंने क्या किया, लेवरेज रिमूव किया है ना, प्लेज रिलीज किया, ये अच्छी बात है, राइट। पैसा लो में भी प्लेज रिलीज हुआ, राइट। चलो ये भी अच्छी बात है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भाई पिछले 5 दिन में केवल भाई साहब एक ही इंसान ने बाई किया है। कौन है, दो लोगों ने एक्चुअली बाई किया, दो कंपनीज में बाई हुआ है। बट एक बहुत बड़ी कंपनी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, है ना। बट एक कंपनी और है जिसमें बाइंग हुआ है, वो कौन सा, CFF फ्लूइड कंट्रोल। अब ये फ्लूइड कंट्रोल नाम से आपको क्या लग रहा है, किस फील्ड की कंपनी होगी।
अरे नाम से क्या लग रहा है आपको किस चीज की कंपनी होगी, किस फील्ड की? चीज की छोड़ दो, व्हाट फील्ड? ऑयल। नो 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 नो, कैन यू से समथिंग रिलेटेड विद वाटर फ्लूइड की बात कर रहे हो? मे बी समथिंग इन शिपिंग, नेवी, whatever, like something like that, no, broadly. Like we are not clear, but can we say something like that? नाम देखते ही अरे मे बी लगा के कह तो सकते हैं ना कि मे बी ऐसा कुछ हो सकता है, राइट? अब वो तो ये है कि वन क्लिक है, यू जस्ट नीड टू क्लिक वंस, है ना? 40 ना 39 लाख का बाइंग किया है, अच्छी बात है यार। चलो ओपन कर लेते हैं, कितना देर लगेगी, राइट? हिंदी खराब हो गई, कितना देर क्या होता है, कितनी देर होता है, राइट? जेंडर बदल दिया, गलत बात है। हाँ जी देखो, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, शिप बिल्डिंग एंड अलाइड। चलो, लग रहा है ना पानी वानी से कुछ रिलेटेड काम चल रहा है ना? ये बीएसई ओनली कंपनी है, अच्छा ये भी बात है। तो मे भी हो सकता है एसएमई कंपनी हो, इनसाइडर बाइंग हो जो अभी हमने देखा था ना। देखो कितना सुंदर नजारा है। अब अगर अगर आपने नूस क्रॉसओवर डेली वाला चलाया होता है स्कैनर, तो किस डेट को आपको मिलता है ये मिलता है ना इधर 6 मार्च को, 5 को, है ना? 5 मार्च को ये आपको मिलता है ना? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि बॉटम बन गया, नूस ग्रीन मतलब बॉटम नहीं होता है, उसके बाद भी स्टॉक नीचे आया, बट नूस ग्रीन ही था, रेड नहीं था। इफ यू हेल्ड ऑन टू इट, 5 वाला स्टॉक कितने का हो गया? 850 का। अभी कितने पे चल रहा है? 750 पे। अच्छा, डेली में बहुत बार ये भी होता है कि ये ग्रीन होगा फिर रेड हो जाएगा, ऐसा हो जाता है ना? आप वीकली देख लो, वीकली में तो कम बार होगा ना ये, राइट? ये चीजें वीकली में तो कम बार होंगी ना। देखो कब हुआ ये, ऑलमोस्ट उसी मतलब 10 दिन बाद हो गया था, राइट? ठीक है, थोड़ा ऊपर बाई करोगे 570 पे। अब ये अभी क्या लग रहा है ना कि ये यहाँ पे जो बायर्स थे वो बहुत दिन से अपना जो बाइंग था उसके बाद से क्या देख रहे हैं, 2 साल से लॉसेस। तो जैसे ही वो प्राइस ऊपर आया तो उन्होंने क्या किया? बेच दी। हाँ, अच्छा उन्होंने इसलिए भी बेचा क्योंकि मार्केट अभी क्या है, 2 दिन 3 दिन से। हाँ थोड़ा। तो जो लोगों को ज्यादा मार्केट नहीं समझ में आता वो लोग डर के मारे क्या करते हैं, मार्केट जब थोड़ी गड़बड़ होती है तो वो बोलते हैं प्रॉफिट वाला भी बेच दो, नहीं तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा। वो सोचते हैं लॉस वाले में तो लॉस है ही है, प्रॉफिट वाले में भी क्या हो जाएगा, लॉस। डर से बेच देते हैं। अब हम आपको समझा ये रहे कि भाई आप प्रोसेस बनाओ, उसको समझ बढ़ाओ उसके ऊपर, उसके हिसाब से काम करो। प्रोसेस से इसकी बाई करना है, बाई करो। प्रोसेस से सेल करना है, सेल करो। प्रोसेस से इसकी कुछ नहीं करना है, कुछ मत करो। ये क्या बात हुई, प्रॉफिट चला जाएगा तो लेट मी सेल, व्हाट इज दिस? डोंट डू इट, है ना? अब ये हो सकता है कि अगर आप गौर से देखो तो हो सकता है कि आज फ्राइडे का भी दिन था और आज ही क्या हो गया हो इसमें, और आज ही क्या हो गया हो इसमें, बॉटम। बॉटम। कैसे? प्री टेस्ट। अब जिन लोगों ने आज बेच दिया होगा या पिछले 2 3 दिन में, अब वो हो सकता है अगले 6 महीने 1 साल बाद क्या करें, बहुत बड़े पछतावे में रहे। क्यों? बाद में ये प्राइस नहीं ना मिले। हाँ, क्योंकि जहां पे उन्होंने बेचा था वहीं पे क्या हो गया, बॉटम, राइट? अच्छा एक और चीज देखो, डेली का न्यूज ग्रीन है, काहे को डरना जब न्यूज है आपके, पता नहीं, आई कुड नॉट फिगर आउट तुकबंदी एनीवे। सो यू हैव सीन इट, राइट? सो अगर आप प्रोसेस से चलेंगे ना, इट विल हेल्प यू। अगर आप प्रोसेस से चलेंगे तो आपको बहुत अधिक सहायता मिलेगी, उससे आपको डर नहीं लगेगा, टेंशन नहीं होगा ना। ग्रीन है यार, रखो उसको, क्या करना है, कोई टेंशन की बात है नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है ना? ऐसे रिसर्च, जैसे आज आपने देखा होगा एक न्यूज आई थी सीबीआई की, क्या न्यूज आई थी?
11:30 आई थी ना न्यूज, 11:30 आईडीएफसी फर्स्ट, आईडीएफसी बैंक पे कुछ तो इन्वेस्टिगेशन का। आईडीएफसी और एयू बैंक के ऊपर रेड पड़ी है सीबीआई की। वो जो हरियाणा वाला, पंचकुला वाला, चंडीगढ़ उधर केस हुआ था ना, पैसे उनके गवर्नमेंट वालों को इधर उधर हो गए थे, राइट? तो उसके ऊपर रेड पड़ी। सो क्या उसकी वजह से एयू बैंक अगर आपके पास है तो बेच देना चाहिए आप? देख के बताओ, अगर आपके पास एयू बैंक है और वो न्यूज आ गई, शुड यू सेल इट? पहली बात तो मेन इसमें इशू क्या है, एयू बैंक मेन प्रॉब्लम है या आईडीएफसी? आईडीएफसी। आईडीएफसी। वो आपको साइज देखना पड़ता है, राइट? उसके हिसाब से यू विल नो कि आईडीएफसी इज बिगर प्रॉब्लम, राइट? इवन फॉर आईडीएफसी इट इज नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम, बट ठीक है, रिलेटिवली स्पीकिंग इट इज बिगर प्रॉब्लम। ये रहा आईडीएफसी, 23 फरवरी को न्यूज आया। आज का न्यूज देख के लग रहा है कि मार्केट इज रिएक्टिंग। आज तो वैसे भी मार्केट वीक थी, नो बिग डील, राइट? राइट। सो ये आपको प्रोसेस अगर रहेगा ना, अगर आप मार्केट से, मार्केट की भाषा में समझना स्टार्ट कर दोगे ना, तो काम आसान हो जाएगा। अभी हमने देखा जिस दिन न्यूज आई थी वो 23 फरवरी, ये भी तो डाउन था, डाउन होने के बाद रिकवर हो गया। पर प्रॉब्लम, अब कोई आएगा बोलेगा सर ये फिर भी गिर गया। आई नो गिर गया, स्टॉप क्राइम। ये गिरा इसलिए नहीं था क्योंकि वो इशू हो गया था, ब्रांच में पैसे इधर उधर हो गया। वो गिरा इसलिए था क्योंकि वॉर, ठीक है? और तुरंत इसने क्या बनाया, नया हाई बना दिया। आई डोंट थिंक दिस न्यूज इज एक्चुअली मटीरियल। जैसे भाग्यनगर, किसी को पता है? एनीबॉडी रिमेंबर्स भाग्यनगर? परफेक्ट स्कोर समझते हो? क्योंकि ये पुराने जमाने वाला है, 100 में 100 नंबर तो मिलते ही नहीं है उस जमाने में, राइट? आज वाला जमाना नहीं है। सो 99 इज द बेस्ट। दिस गाय हैज 9 9 9 9 9 9 एवरीवेयर, 9 9, है ना? 9 का पहाड़ा इसने पढ़ रखा है, राइट? देखो इधर ये भी लिखा होता है, वो बात अलग है, इसका रिजल्ट ऑलरेडी क्या हो चुका है, 30 अप्रैल को आ गया है। बट कई बार आगे आने वाला होता है, वो भी लिखा होता है ना, सो दैट ऑल्सो यू डोंट हैव टू बॉदर। और वो मैं नाम पे क्लिक करना भूल गया, बट ये नाम पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो वेबसाइट खुल जाती है ना कंपनी की, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स, है ना, एनालिसिस करने में। अब क्या ये आप देखोगे, इनसे मिलो आप। अगस्त में अगर आपको याद हो तो मार्केट जो है इधर क्या थोड़ी उतनी अच्छी थी नहीं, राइट? बट फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे अगस्त के बाद या सितंबर वगैरह में, तो यहाँ पे क्या हुआ था, इसमें न्यूज क्या हुआ था, ग्रीन डेली में, राइट? न्यूज ग्रीन, और बीएनएफ क्या होने लगा, बीएनएफ तो मान लो यहीं से अपवर्ड स्लोपिंग हो गया, राइट? अभी 95 पे था। हाउ मेनी एक्सपर्ट्स डू यू थिंक न्यू अबाउट भाग्यनगर सितंबर 2025 में, अक्टूबर 2025? नॉट मेनी, राइट? अब पब्लिक कंपनी है तो कुछ लोग तो हमेशा जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं जानता होगा, कुछ लोग तो जानते हैं। बट यही कंपनी, अच्छा रिजल्ट आया, 20% अप, राइट? उसका फिर आप, राइट? और ये इधर आप आओगे, मार्केट थोड़ी ठीक हुई, फिर 10% अप, राइट? फिर इधर मार्केट वीक हुई, गिरा। सो लाइक ultimately everything goes up down, but the point is over the period whether it is moving up more or down more, that is the question, right? तो ये स्टॉक ज्यादा ऊपर जा रहा था ओवर द पीरियड या नीचे आ रहा था, ऊपर, राइट? अभी रिसेंटली रिजल्ट आया ऊपर आ गया। अभी जब यहाँ आ गया है ना, अब जाकर ट्विटर में सर्च करो भाग्यनगर, अभी आपको मिलेगा कि अरे जी नोबडी अंडरस्टैंड भाग्यनगर का बिजनेस, वो तो कैपेक्स कर दिए हैं भाई, अभी तो ये हो जाएगा, कितने मेट्रिक टन पता नहीं पर एनम कुछ कुछ बोलेंगे, जो मुझे भी नहीं पता है आज, ठीक है? अभी भी नहीं पता है, ठीक है? बट उन्हें पता है समाव कि भाई अभी तो ये कैपेक्स हो गया है, अभी तो ये हो जाएगा, फिर मार्जिन में ये हो जाएगा,
फिर सेल्स में हो जाएगा, और ये सेल्स, ये मार्जिन साथ ये प्रॉफिट बनेगा। अब आप अपना मल्टीपल दे दो, 50 का दे दो, 50 का दे दोगे तो कहेंगे स्टॉक डबल हो जाएगा। तो भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, कैपेक्स, सेल्स, मार्जिन, मल्टीपल, वो क्या एनालिसिस यहाँ नहीं हो सकती थी क्या? मान लो अगर 150 में हो जाती, बजाय कि 300 हो जाता प्राइस, तो अच्छा नहीं रहता क्या? 150 में ये एनालिसिस क्यों नहीं थी? और थी तो पब्लिक क्यों नहीं थी? और ये 90-95 पे 100 पे कर देते तो और भी अच्छा हो जाता, 3 गुना हो जाते पैसे। पर तब तो नहीं कर रहे थे आप। कहने का मतलब क्या है ना, जब कोई चीज चल जाती है ना, तो फिर लोग यही बताते हैं जी उसकी आंखों में तो मैंने आग देखी थी, आग, उसी आग की वजह से उसने जो अचीव किया। तो आग वो अचीव करने के पहले नहीं दिख रही थी, तो बता देते आग देख के यार ये आदमी है, ये बहुत अचीव करेगा लाइफ में। वो तो कोई नहीं बोलता। तब तो वही लोग मजे ले रहे होते हैं, अरे इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं है, ये तो कमोडिटी प्लेयर है, मार्जिन इसके हिट हो जाएंगे। अब जैसे भाग्यनगर केस में पता है क्या बोल रहे होंगे कुछ लोग, पहले जब ये चला नहीं था, क्योंकि जब चल जाता है तो सिंगिंग सबकी बदल जाती है, ट्यून बदलना पड़ता है, राइट? और जब नहीं चला होगा, जब थोड़ा बहुत चला होगा, दे वुड हैव सेड लिसन, इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कॉपर है। अब भले मैंने नहीं लिखा, और मुझे तो पता ही है ना इतना, ये जो कंपनी काम करती है उसमें जो रॉ मटेरियल है इसके लिए वो क्या है, कॉपर। कॉपर के रेट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्यों? कमोडिटी साइकिल, मेटल साइकिल। अब कॉपर के रेट बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है इसके रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है। दे विल से कि भाई बट ये तो बड़ी कंपनी है नहीं, इसका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, तो ये जो सेलिंग प्राइस है वो तो ये बढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि ये बड़ी कंपनी नहीं है। तो अगर ये बढ़ा नहीं पाएगा और रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, तो इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घट जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्जिन घट जाएगा। अभी सुनने में तो आपको सही लगेगा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, कॉपर टाइप की चीज जो है, अगर उसका रेट बढ़ा तो आपको क्या लगता है, इसके जो प्रोडक्ट यूज करते हैं भाग्यनगर के, उनको नहीं पता है क्या कि कॉपर का रेट बढ़ रहा है? क्या लगता है आपको? The companies which are buying products from Bhagyanagar, which is made up of copper, do you think they don't know कि copper का price बढ़ रहा है? Or do you think they know? Of course they know, right? उनके relationship है भाग्यनगर से, right? They're not buying simply because of price, right? They are buying because they know the people, they rely on them, right? They rely on the fact कि वो जो क्वालिटी देते हैं वो इस टाइप की होती है, राइट? और उनको ये भी पता है रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है कहीं और से भी लेंगे वहां भी रेट बढ़ेगा। अब ऐसे तो ये बात हो गई कि यार जी आईटीसी वाले जो है ना, सिगरेट के दाम बढ़ा रहे हैं, अच्छा ये जो पान वाला है इसका तो सब धंधा खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा यार? वही सेम सिगरेट आईटीसी की तो बाकी जगह भी महंगी मिलेगी ना। अब जब महंगी मिलेगी तो देयर इज नो डिफरेंशिएशन ना, कि उसमें सिगरेट का प्राइस बढ़ गया तो इट इज नॉट गोइंग टू हर्ट इन एनी पर्टिकुलर सेंस इन टू दैट पर्टिकुलर पान वाला, राइट? उस पान वाले को किसी विशेष तरह से उससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सिगरेट का रेट बढ़ गया, पूरी दुनिया के लिए बढ़ा है। तो फिर किस बेसिस पर डिसाइड होगा कि उस पान वाले के यहाँ कौन अभी सिगरेट बाई करेगा? अरे वही लोग बाई करेंगे जो ऑलरेडी उसको जानते हैं, जो उससे उसके अच्छे रिलेशन है, राइट? वो लोग अभी भी बाई करेंगे, क्योंकि वो किसी और पान वाले के पास जाएंगे, वो भी तो महंगे ही रेट पे देगा ना, क्योंकि उसके घर में तो बनती नहीं है सिगरेट। कॉपर किसी घर में तो बनता नहीं है ना। और जिसके घर में बनता है, जब उसको अच्छा रेट मिल रहा है तो वो अच्छे रेट पे बेचेगा, तो मैं सस्ते पे क्यों दे देगा? सो कहने का मतलब क्या है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो एक्सपर्ट है ना, ये एक्सपर्ट नहीं है। व्हाट दे डू इज दे डू मोमेंटम, बैकएंड में मोमेंटम है, और उनको आता है नहीं फंडामेंटल बिजनेस। करते क्या है, जब कोई स्टॉक चल रहा होता है ना, दे ट्राई टू एक्सप्लेन, जबरदस्ती कहानी बना देता है। अब चूंकि आता है नहीं, तो ज्यादातर कहानियां क्या हो जाती है, गलत। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, फनटेक। क्योंकि कभी मार्केट सही होगी, कभी आप सही होगे, कभी आप पहले सही होगे, कभी मार्केट पहले सही होगी, पता नहीं है, पता करना भी नहीं। क्योंकि आखिर में आप ये जानने नहीं आए हो कौन सही है, कब सही है, कितना सही। आप आए हो पैसे कमाने। पैसे आप तभी कमाओगे जब कोई चीज आपके खरीदने के बाद ऊपर चली जाए, और गवाओगे तभी जब खरीदने के बाद नीचे आ जाए। और ये काम आप बखूबी कर सकते हो अगर आप फनटेक फॉलो करो तो वो भाग्यनगर का कमोडिटी प्लेयर है, मार्जिन हिट हो जाएगा, रॉ मटेरियल कॉपर है। हेलो सर, इफ यू कैन अंडरस्टैंड एंड टाइप इट ऑन ट्विटर, आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज इट, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। गेस व्हाट, स्टॉक 3 गुना हो गया, 3 गुना से ऊपर हो गया। अच्छा, आप में से कितने लोगों को याद है कि ये लैक्स के टेलीग्राम पे
हम लोगों ने बहुत बार इसकी चर्चा की है केस स्टडी के रूप में कि भाई इसको ऐसे देखना चाहिए, ऐसी चीजें हैं। की है कि नहीं इसकी चर्चा, ये बताओ। कोई है जिसको याद है? किसी को नहीं याद है? हमने की थी, सितंबर में की थी, उसके बाद कई बार की है। बहुत पहले ही ट्रैक कर रहा था मैं। 2025 सितंबर में, ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है तब हमने क्या इतना डीप रिसर्च कर लिया था क्या बिजनेस मॉडल है क्या नहीं है? नहीं, उतना करने की आवश्यकता होती नहीं है। जैसे क्या आपको डीप रिसर्च करना पड़ेगा कि यार वैभव सूर्यवंशी कितने बजे टॉयलेट जाता है, उससे कि वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छा बैट्समैन है, जो भी नई जनरेशन में सबसे अच्छा बैट्समैन वही है आजकल। तो कितने बजे टॉयलेट जाता है, कितनी देर टॉयलेट में रहता है, कितनी देर बाद बाहर निकलता है, ये सब पता करने की जरूरत है इसके लिए? बिल्कुल भी नहीं, राइट? सेम थिंग इज ट्रू अबाउट द मार्केट, इज जस्ट दैट कि हमको कॉम्प्लिकेट करने में क्या आता है, मजा। हमें लगता है एक्सपर्ट कौन होता है, तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें बताए, कुछ ऐसा बताए दिमाग घूम जाए, तो समझ में ही ना आए। लेकिन अगर आप जानते हो तो लैक्स का हमारा काम क्या है, दिमाग घूमे नहीं। अगर दिमाग घुमा हुआ है तो उसको हम क्या करें, सीधा कर दें, है ना। और कुछ कॉम्प्लिकेशंस में अगर आप फंस रहे हो तो आपको वहां से निकाल के सिंप्लिसिटी की तरफ ले जाए, एंड दैट इज व्हाट लैक्स इज सपोज टू अचीव। और ये जो अभी हमने भाग्यनगर की बात की, ये भाग्यनगर एक्चुअली लाइव केस स्टडी है, ठीक है। और इसमें एक और सीखने की बात ये कि डरना नहीं है। अरे भाई इतने प्रॉफिट चले गए, मार्केट गिर रही है, जो दे रहा है प्रॉफिट उसको काहे काट रहे हो? आपकी 10 दुकानें, 7 दुकानों से लॉसेस हो रहा है, 3 दुकानों से पैसा आ रहा है, 7 से लॉस आ रहा है, तो क्या इस चक्कर में उन 3 को भी बंद कर दोगे? हाँ, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई ये धंधा करना ही नहीं है, सारी दुकानें बंद करो, तो समझ में आता है। बट वो 7 जो लॉसेस कर रही है वो खोल रखी हैं इस उम्मीद में कि किसी दिन प्रॉफिट कमाएंगी, बट जो 3 प्रॉफिट कमा रही है उनको बंद कर रहे हैं। क्यों? इस डर में कि भाई इसमें भी लॉस हो जाए, डोंट डू इट। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, या यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, सेम थिंग, इट विल टेक यू टू द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। सब कुछ 1 क्लिक पे हमने बना दिया है ना। देखो कॉपर वायर मैन्युफैक्चरर है, ऑब्वियस बात, अगर वायर बना रहा है कॉपर की तो कॉपर इसका क्या हुआ, रॉ मटेरियल। अभी तो वेबसाइट खुली भी नहीं है, पता चल गया। इसके लिए कोई डीप रिसर्च एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। अब ये देखो, अगर आपको एनएससी के पेज खोलना है ना कि भाई ये कंपनी एनएससी में है ना, तो वो आपको ऐसे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा ऐसा, ठीक है। ये ये रहा, ठीक है। वैसे अगर आपको बीएससी जाना तो यहाँ पे क्लिक करके पहुंच जाएगा आपको। ये 5% की सर्किट लिमिट में स्टॉक आजकल चल रहा है, मेटल्स का पार्ट है, और मेटल्स का जो आरएस स्कोर है वो 82 के अराउंड है, इस स्टॉक का 99 है। पहले ये बताओ, ये स्टॉक जिस इंडस्ट्री का पार्ट है, वो इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, खराब कर रही है, एवरेज कर रही है, क्या कर रही है? वो इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है। 82 अगर आपका इंडस्ट्री का आरएस स्कोर है ना, इट इज ग्रेट, ठीक है। और ये भाई सब क्या कर रहे हैं, तो इनके मित्र जो है एवरेज परफॉर्मेंस किए हैं 82 की, और ये 99 लेके आए हैं। एक तो इनके मित्र गण क्या है, बड़े अच्छे हैं, और ये सुपर अच्छे हैं, ठीक है, यही चाहिए अपने को। तो बात ये नहीं है आज आप इसको पहचान रहे हो, आज तो 99 दिखेगा यार, बात ये कि इसको 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 9 महीने पहले क्या आप पहचान सकते थे क्या? बच्चा पैदा हो गया तब तो पता ही है कि लड़का है कि लड़की है, बट कुड यू हैव गेस्ड इट समहाउ? 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 9 महीने पहले, 9 महीने पहले कैसे गेस करोगे? माँ बाप को ही नहीं पता है, मतलब माँ को ही नहीं पता कि शी इज प्रेग्नेंट, हाउ डू यू नो? यू कांट, राइट? बट इफ यू कैन से कि भाई लड़का होगा या लड़की होगी, और वो बात सही हो जाए, तो फिर कोई बात है, राइट? सेम थिंग इज ट्रू अबाउट द मार्केट। जैसे मार्केट में 9 महीने से भी काम नहीं चलता,
एक्चुअली मार्केट में जनरली आपको 15 से 18 महीने आगे सोचना पड़ता है, देन ओनली यू कैन एक्चुअली मेक ग्रेट मनी। अब देखो, जैसे एक और स्टॉक है, उसका नाम है HFCL, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो आपको कुछ स्पेशल चीजें इसमें आपको मिलेंगे। एंड बिफोर आई मूव टू दोज स्पेशल चीजें, ये हम और इम्प्रूव कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ना ये जैसे अभी दिख रहा है ना, दिस विल गेट बेटर, है ना। थोड़ा हम लोगों को भी स्लैक दो, है ना। वी आर ट्राइंग टू लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी आर ट्राइंग, है ना। तो उसके चक्कर में कई चीजें कर देते हैं, फिर उसको इम्प्रूव करते हैं, ऐसे करके चलता रहता है। देखो, ये अगर आप फाइलिंग्स देखोगे तो ये वाला सेक्शन है फाइलिंग्स का, राइट। अब इसमें अगर आप आ जाओ तो ये आप देखिए, देखो अगर कुछ दिखे तो बताना मुझे, ठीक है? ये देखो, ये 13 मार्च का है कुछ, है ना। अब अनफॉर्चुनेटली इसमें जो लिंक आते हैं वो सारे गलत आते हैं। देखो, ये नीचे लिंक पढ़ोगे ना तो ये एक्चुअली आपको BSE पेज पे लेके जाएगा, इट विल नॉट बी ओपनिंग द फाइलिंग, है ना। सो ये भी सही करना है हमको, कर देंगे। अभी क्या है, ये स्टॉक के पेज पे लेके चला जाएगा। अब उसका क्या करूँ मैं, वो जो फाइलिंग देखना है यार, PDF चाहिए वो वाली, राइट। चलो, वो भी सही हो जाएगा। अब यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ से जाने में तो बड़ा, व्हाट इज दिस, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। और दिखाओगे यार, अच्छा इसमें डेट्स का वो होगा ना, अभी 15/2/2026, है ना। इसको क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्या हमने देखा था शायद वो मार्च में, राइट। ऐसे रिसर्च करना होता है, इट्स नॉट रियली दैट कॉम्प्लिकेटेड, है ना। यू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि आपको डर लगने लगता है, यार ये 28 का ही क्यों दिखा रहा है भाई। अच्छा, 15/2, ये क्या डेट है इसका, पता नहीं, इसको इसको क्या दिक्कत है भाई। ये तुम ये ले लो ना, पता नहीं क्या है। अच्छा, मतलब BSE वाले ऐसी वेबसाइट बनाए हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाए अगर आप थोड़ा, मतलब इतने इतने स्क्रॉल करने के बाद बना दिए हैं कि नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा कौन से वाले पे क्या चल रहा है। हाँ, ये वाला, राइट। सो अगर आप देखोगे, 3/2 है ना अभी तो, ठीक है। यहाँ पे, हाँ, ये है, ये आपको, अरे एक सेकंड, नॉट इवन दिस वन, इसके ऊपर है। क्या है यार ये, व्हाट इज दिस, 2 मार्च ही तो है। ये 25/2 है, ये है 2 मार्च, राइट। डेटा सेंटर, भारत कनेक्ट, राइट। हाँ, ये वाला है, ये वाला। सो अगर आप ये, अब ये आपको मिलेगा कहाँ, ये आपको मिलेगा यहाँ पे, आई विल शो यू। ये आप यहाँ पे आओगे, फाइलिंग्स में आओगे, ये एक्सचेंज फाइलिंग्स है। ये आपका रोज का धर्म होना चाहिए कि भाई रोज जो है मैं 2 मिनट 5 मिनट लगा के फाइलिंग्स में जाके देखूंगा। सो इफ यू कम हियर इन दिस पेज यू विल फाइंड कि ये जो है ऑर्डर वाले पेज पे आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये पेज इतना भारी है कि ऐसे ही थक जाएगा वो, खैर। तो ये अगर आप देखोगे, तो इनको कितने का ऑर्डर मिला था, 10,000 करोड़। कितने साल के लिए, कितने साल के लिए, 5 साल। तो अगर 5 साल के लिए 10,000 करोड़ का ऑर्डर है, तो ऑन एन एवरेज एक साल के लिए कितने करोड़ का ऑर्डर हुआ, 2,000 करोड़, राइट। अब ये आप पेज अपने आप से खोल लेना अभी यहाँ पे, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, वांट टू वेस्ट योर टाइम।
सो यहाँ पे आपने देखा कि एक कंपनी को 2000 करोड़ पर ईयर का नेक्स्ट 5 ईयर के लिए ऑर्डर मिल गया, ठीक है, ये हमने देख लिया, ठीक है। बहुत तरीके हैं दुनिया में काम करने के, में आपके ऊपर है कि आपको कौन सा काम करना है। अरे यार, आई मिस्ड ओपन tax.sh, है ना, ये ज्यादा सही तरीका होता है, सिंपली वो एडिट, है ना। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमको याद रखना है डेट, तो डेट क्या थी, 2 मार्च, है ना। तो 2 मार्च को उसी दिन तो जो है ये युद्ध क्या हुआ था, पहला दिन था जब आपको मार्केट में रिएक्शन देखने को मिली थी। तो नॉर्मल जो लोगों का अंडरस्टैंडिंग था उस दिन पे क्या था, लोग डरे हुए थे कि भाई अभी तो मार्केट जो है पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो पता नहीं क्या क्या लोग कहानियां बना रहे थे। लेकिन आपका काम क्या है, अगर आपके पास रूल्स है, एक प्रोसेस है, एक टूल है जिसको आपको डेली वही करना है, भाई मम्मी ने थप्पड़ मारा कि नहीं मारा इससे फर्क नहीं पड़ता है। सुबह सो के उठो तो ब्रश करना है, और ब्रश करने का आपका एक पैटर्न होगा, राइट। और रात में क्या हुआ था, किसके साथ हुआ था, इट डज नॉट रियली चेंज दैट पैटर्न, राइट। सेम थिंग शुड बी ट्रू अबाउट मार्केट। आपके पास एक सेट प्रोसेस होना चाहिए, फ्रेमवर्क होना चाहिए जो आप फॉलो करते हो, इररेस्पेक्टिव की मार्केट में वॉर हो रही है कि नहीं। इफ यू डिड दैट, सो आपको 2 मार्च को ये आपको आपके रडार पे आ जाएगा कि भाई ये कंपनी आ गई। अच्छा, अब एक और सोचने की बात है, इसका मार्केट कैप कितना है, 22,000 करोड़, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और इसका अगर आप वैल्यूएशंस देखोगे तो प्राइस टू सेल्स कहीं लिखा होगा यहाँ पे ना, 3.9, 4, तो इसकी सेल्स कितनी होगी, 22,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, 4 टाइम सेल्स पे ट्रेड कर रही है, कितना हुआ, कितना हुआ, 5,000, 5,000 करोड़ के आसपास में होगा कि नहीं। तो आप ये देख लो, ठीक है, 5,000 करोड़ है ना, बट तब तो वो रिजल्ट आया नहीं था। तो अगर आप जो रिजल्ट देखोगे तो उसमें 4,000 करोड़ आपको दिखेगा, राइट, 4,000 5,000 करोड़। और तब चूंकि ये स्टॉक उतना चला भी नहीं था तो मार्केट कैप भी नीचे था, वो तो अलग बात है। बट एक बात बताओ, अब याद रखो, एक कंपनी है जिसका एनुअल सेल्स है 4,000 करोड़ रुपए, बट उसने अभी अभी एक डील क्रैक की है कि जिसमें अगले 5 साल तक उसको हर साल 2,000 करोड़ का सेल्स केवल वही एक डील की वजह से आएगा, एक कंपनी से। इज इट अ गुड न्यूज, बैड न्यूज, ग्रेट न्यूज, अर्थ शैटरिंग न्यूज, किस टाइप का न्यूज है ये, अब बोलना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज आई नॉट अंडरस्टैंड कि आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी नहीं। किस टाइप का न्यूज है ये, गुड, ग्रेट, बैड, अर्थ शैटरिंग, किस कैटेगरी में डालोगे आप इसे। ग्रेट न्यूज। नॉट जस्ट ग्रेट, इट इज एक्चुअली अर्थ शैटरिंग, राइट। एक कंपनी है 4,000 करोड़ का सेल्स करती है एनुअली, उसका 2,000 करोड़ का सिर्फ एक डील होगा, वो भी अगले 5 साल के लिए। इट इज सिंपली अर्थ शैटरिंग फॉर दैट कंपनी, राइट, सच ए बिग डील। अब ये, लेकिन इसमें क्या वो लिख के देंगे क्या आपको कि ये अर्थ शैटरिंग है या ग्रेट है, लिख के देंगे क्या, नहीं। ये आपका काम है ना इंटरप्रेट करना, डेटा उन्होंने दे दिया, आपका दिमाग तुरंत रन करना चाहिए, यार इस कंपनी की सेल्स कितनी है, अच्छा ये तो बहुत बड़ी डील है यार, अगर ये आपको समझ में आ गया। अब वो किस चीज की डील है अभी हमने ये बात ही नहीं की, कंपनी क्या करती है ये बात ही नहीं की, हम तो सिंपली ये बात कर रहे हैं आपकी प्रेजेंट की सेल्स कितनी है, और ये कितना पोर्शन है उस सेल्स का, और कितने साल की विजिबिलिटी देता है। जैसे ही विजिबिलिटी बढ़ेगी मार्केट क्या करेगी, मार्केट का तो काम है ना, डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है फ्यूचर के इवेंट्स को प्राइस करना, दैट इज द जॉब ऑफ द मार्केट। अभी सडनली मार्केट को क्या करना पड़ेगा, प्राइस ऊपर करना पड़ेगा या नीचे, बोलो बोलो, प्राइस ऊपर करना पड़ेगा या नीचे, ऊपर करना पड़ेगा। ऊपर करना पड़ेगा। और जब आपको ये पता चल जाएगा, अरे ये तो ऑप्टिकल फाइबर की डील है, अरे ऑप्टिकल फाइबर तो यूज हो रहा है डेटा सेंटर में, एआई में, और एफपीवी ड्रोन्स में, है ना, रशिया यूक्रेन और ईरान, और आजकल हिजबुल्ला वाले यूज कर रहे हैं। यू माइट हैव सीन लॉट ऑफ वीडियोस ना, जहाँ पे लोन इजरायली सोल्जर्स आर गेटिंग किल्ड, दे आर बीइंग हंटेड बेसिकली, है ना, एफपीवी ड्रोन्स के थ्रू। फर्स्ट पर्सन विजिबिलिटी वाला जो ड्रोन होता है उसमें वायर लगी होती है ना, वो वायर किस चीज की होती है, किस चीज की होती है, ऑप्टिकल फाइव। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। अब ये देखो यार, 2 मार्च, अच्छा पहली बात तो इसका न्यूज कब से ग्रीन है, फरवरी से, लाइक आई टोल्ड यू न्यूज ग्रीन है, उसका मतलब थोड़ी ये, मतलब उसके बाद जो है वो एकदम रॉकेट हो जाएगा। बस ये है कि उसके बाद क्या है कि मार्केट के रिलेटिवली इट विल डू वेल। 2 मार्च का है, 2 मार्च ये,
कोई रिएक्शन है नहीं, बट आपको अपनी बुद्धि लगानी है। इन्हीं भाई साहब ने क्या किया, 8 अप्रैल को ये 75 पे घूम रहा है, फिर क्या होगा, 150 होगा। 75 से 150 कितना होता है वैसे, 100%, 2x, है ना। अब आपको लगेगा अरे ये तो हो गया तब बता रहे हैं, अरे भाई होने के पहले भी बताया था, ठीक है। क्यों बताया था, कब बताया था, ये सब कहानी बताने की फुर्सत नहीं, बट होने के पहले बताया था, ठीक है। अच्छा वीकली न्यूज देखो कितना सुंदर नजारा है यार, आपको दिख रहा होगा ना, आपको लग रहा होगा यार काश, काश कहीं ऐसा होता कि जब जब आपकी फेवरेट हीरोइन जवान थी तब आप भी जवान होते, तब हो सकता है आप पैदा नहीं हुए थे ना, या आप बहुत छोटे थे, कुछ मतलब नहीं है, राइट। उसी टाइप की हालत है कि भाई ये स्टॉक मल्टीबैगर बन गया, बट काश लैक्स होता तब अपने पास। ये 16 रुपए का स्टॉक देखो, यहाँ पे ग्रीन होता है नोट्स, राइट। 16 रुपए से कितने का हो जाता है, 80, 90, राइट। 90 के बाद ये इधर रेड हो जाता है, राइट। उसके बाद ये थोड़ा सा ग्रीन होता है, बट नथिंग मच, है ना, फ्लैट ही है। उसके बाद वापस से ग्रीन होता है हाँ? और 77 से कितने का हो जाता है, 160, है ना, फिर रेड हो जाता है, राइट। अभी रेड होने के बाद वापस से क्या हुआ, ग्रीन। और जब ये ग्रीन होता है तब कितने पे था ये, 70 पे। 70 से नीचे जाके कितने पे गया था, 66 तक। तो 70 से 66 तक का रेंज था, 72 से 66, 6 रुपए का रेंज था आपके पास, आराम से बाई कर सकते थे, 2 3 4 हफ्ते बाई कर सकते थे। उसका क्या हुआ, रॉकेट। और रॉकेट ऐसे कि लाइक मतलब ऐसे लग रहा है कि मतलब लाइक, अच्छा ये देखो, ये पान वाला और आप और मैं बाई करके स्टार्ट नहीं कर सकते हैं रैली, हम नहीं रन करा सकते इसे, इसे बिग मनी करा रहा है, स्मार्ट, और करा नहीं रहा, वो हो रहा है। लाइक इवन बिग मनी, स्मार्ट मनी डज नॉट वांट द स्टॉक टू रन, व्हाट दे वांट इज कि वो बाई कर ले और ये बाद में चले। अब प्रॉब्लम ये है कि सिंस दे आर अरावत, अरावत चलता है तो धरती हिलती है, प्रॉब्लम ये है। तो यहाँ पे जब वो स्मार्ट मनी, बिग मनी, दे आर पाइलिंग ऑन इट, दे आर रनिंग आफ्टर इट, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, इट इज रनिंग क्रेजी। और वो जो आदमी सोच के बैठा था ना कि 10% करेक्शन आएगा देन आई विल बाय, अब उसको भी फोमो हो रहा हो, कह रहा है यार अगर नहीं बाय करोगे तो ऑप्टिकल फाइबर का स्टॉक है नहीं, क्या करोगे, बाई करो यार। फिर कहते हैं चलो 15% हायर सही, वो बाई करेंगे तो 15 का 18 हो जाएगा, 18 होगा तो वो जो बैठा था अभी, है ना, सन्नाटे में, अभी वो भी बाई करेगा, राइट। ऑप्टिकल फाइबर का दो ही स्टॉक है इंडिया में, स्टरलाइट टेक और दूसरा क्या है, HFCL। गेस व्हाट, जब स्टरलाइट टेक अच्छा कर रहा था, लॉट ऑफ पीपल सेड कि यार उनके पास ये है वो है, चलो ठीक है। जब नहीं अच्छा कर रहा था तब सेड कि यार वेदांता ग्रुप की कंपनी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इशू। स्टॉक अच्छा ना करे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इशू है, स्टॉक अच्छा करे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इशू नहीं है। सॉल्व हो गया क्या वो, जी क्या बात हुई यार। जब स्टरलाइट टेक अच्छा कर रहा था ये सोया हुआ था, ये यहाँ पे सोया हुआ था, राइट। अगर आप यहाँ पे स्टॉक की बात की हो देन यू आर जीनियस, यू ट्रूली अंडरस्टैंड एंड यू आर ट्रूली ट्रैकिंग मार्केट। और यहाँ पे एक्सपर्ट लोग आपको आगे बताएंगे कि भाई स्टरलाइट टेक के पास जो है ना वो HFCL के पास है ही नहीं, उसकी डिमांड ही नहीं है, इसलिए HFCL नहीं अच्छा करा। अब क्या वजह है, अब तो HFCL मतलब 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर पहुंच गया ना, प्रीवियस हाई के करीब डबल हो गया। अब क्या सडनली इसके पास स्टरलाइट टेक वाला आ गया है क्या, मैटर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, पहले तो नहीं था। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज एवरीबॉडी इज एक्चुअली मोमेंटम गाय, है ना, सब भाव के खिलाड़ी हैं। भाव अच्छा करेगा दे विल इन्वेंट ए स्टोरी टू जस्टिफाई कि ये क्यों अच्छा है, भाव खराब करेगा दे विल टेल यू कि अरे ये खराब है वो खराब है। जैसे 2 साल पहले भारत से अच्छी मार्केट ही नहीं थी कहीं, अब आज की डेट में भारत से खराब मार्केट ही नहीं है, पाकिस्तान भी हमसे बेहतर है, आप बताओ गेस व्हाट। 2 साल पहले ये नहीं सही बात थी कि भारत से अच्छी कोई मार्केट नहीं है, और इनफैक्ट अगर तब आपने अमेरिका और बाकी जगह डाल दिए पैसे, अमेरिका, चाइना, ताइवान, कोरिया, यू मेक मच मोर मनी, पाकिस्तान में डाल नहीं सकते हो, वैसे पूरा देश है, कहाँ डालोगे, पूरा डालना हो तो डाल दो। लेकिन अब आज लोग बोल रहे हैं कि भारत में मार्केट कूड़ा है, बाकी सब अच्छा है। 2 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद मीन रिवर्स है, फिर क्या होगा, भारत की मार्केट अच्छी हो जाएगी, जो आज जहाँ पैसे डालोगे वो सब खराब है। ऐसा करना नहीं है। तो HFCL देखो कितना बढ़िया। सी अगर आप न्यूज पढ़ते हो ना और न्यूज का स्कैनर आप यूज करते हो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी, आसान और बेहतर हो जाएगी। देखो आप स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, ठीक है, अब इसके चार्ट में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो क्योंकि इसमें डिमर्जर वगैरह हुआ है, तो हो सकता है प्राइसेस एडजस्टेड ना, है ना, बट स्टिल ब्रॉडली यू विल गेट द ट्रेंड, है ना। एंड बाय द वे डिड यू नोटिस, हमने चार्ट फिक्स कर दिया है। पहले जब आपका चार्ट लोड होता था ना
ये वॉल्यूम वाला पैन इतना बड़ा होता था, न्यूज वाला पैन इतना बड़ा होता था, प्राइस वाला पैन छोटा सा रहता था, एंड इट वाज लाइक अ मेस। एवरी टाइम यू हैड टू करेक्ट इट। करेक्ट करने के बाद नया चार्ट खोला, फिर वही आ जाएगा पुराना वाला। अभी क्या है, नीट क्लीन बढ़िया, है ना, बिना कुछ करे ये आपको सेटिंग मिलता है। अगर आपको इसको छेड़ना है क्योंकि यू बिलीव यू कैन डू बेटर, तो आप कर सकते। अब ये देखो, ये 28 जनवरी 2026 को 20% पे क्यों रिजल्ट आया? अच्छा आया खराब आया इसकी बात नहीं है, रिजल्ट आया 20% आया, न्यूज क्या हो गई? उसके 3-4 दिन बाद ये जीएल के पास पहुंच गए। 112 का स्टॉक आजकल 420 में चल रहा है। एवरीबडी इज इन्वेंटिंग स्टोरी वेयर 420। भाई इधर कहाँ थे ये जब 100 रुपए पे था, है ना, 120-130 रुपए पे था, तब आपके पास क्या 100 से 130 150 के आसपास में स्टोरी नहीं थी, आपने रिसर्च नहीं किया था। प्रॉब्लम ये है, लोग रिसर्च तब नहीं करता। सो इफ यू फाइंड समबडी हु इज एबल टू डू रिसर्च अर्ली, बस यही आपके एज, यही सीखना है आप, और कुछ नहीं करना। ठीक है। अच्छा, आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो बताइए ना, क्योंकि ये वन वे से चलता है। देखो ये एडजस्टेड चार्ट नहीं है। एडजस्टेड चार्ट होता तो इसका हाई होता 307 रुपए। कहाँ है इतना? यहाँ 415 है ना। सी ये थोड़ा डेटा है ना इधर का, थोड़ा ज्यादा ऊपर, क्योंकि ये कंपनी इससे अलग हो गई है, ये प्राइसेस घटने चाहिए। ठीक है। तो ये काफी पहले ही हाई लगा चुका है ना। ठीक है। बट इसमें अगर आप वीकली और डेली वैसे देखोगे ना, तो इट विल शो यू राइट थिंग, है ना, तो उसमें प्रॉब्लम है नहीं। मंथली में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मंथली देखो, ग्रीन कब हुआ था? वो सेम वीक पे। ठीक है? अभी आपको समझ में आया ना कि न्यूज की पावर क्या है। न्यूज अच्छा यूज कैसे करेंगे? एनीबडी हु टेल्स मी। भाई न्यूज का क्या करेंगे? स्कैनर कहाँ पे होता है, कैसे दिखता है न्यूज का स्कैनर? लैक्स पे जाओ, स्कैनर्स पे जाओ, और ये रहा न्यूज। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, यू विल गेट न्यूज, राइट। अब न्यूज के स्कैनर्स में ऑब्वियस बात है, पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना, क्रॉसओवर वाले, राइट। रेड, ग्रीन, है ना, ये 4 कैटेगरी हो जाएगा। फिर डेली, वीकली, मंथली, वो 3 हो जाएगा, राइट। तो ये 4 × 3 है ना, तो 12 कॉम्बिनेशन बनेगा। बट आपको काम क्या होगा? मोस्टली पॉजिटिव से होगा, राइट। नेगेटिव से तब होगा जब आपके पास ऑलरेडी कोई चीज है, उसको बेचना है। पॉजिटिव का काम होगा रिसर्च करने के लिए, राइट। तो एज ए इनपुट कि जो आपको आइडिएशन करना है, रिसर्च करना है, फर्दर स्टडी करना है, उसके लिए आपको पॉजिटिव क्रॉसओवर यूज करना पड़ेगा डेली, वीकली, मंथली में, राइट। तो आप कुछ भी कर सकते हो, डेली, वीकली, मंथली, जो भी आपकी इच्छा करे। जैसे डेली में अभी आपको 208 स्टॉक दिख रहा है ना, आपको लगेगा ये तो बहुत है, पर क्या करें भाई, अब वो 208 है तो है। अब उसको, अगर उसको आपको काटना छाटना है, तो आप अपने और फिल्टर लगा लो, इसमें मार्केट कैप का लगा लो, ट्रेडिंग का लगा लो, एनएससी लगा दो, बीएससी लगा दो, कुछ भी लगा लो, इंडेक्स का लगा दो, वॉच लिस्ट लगा दो यार, कि भाई मेरी ये वॉच लिस्ट है, उसी के जो स्टॉक है बस वही बताओ। आपकी इच्छा, आप जो करना चाहो। जैसे मैं यहाँ जाके एनएससी 500 भी लगा सकता हूँ, क्या है, निफ्टी टोटल मार्केट भी लगा सकता हूँ। लेट मी, सो निफ्टी टोटल मार्केट मतलब भारत के जो 750 बड़ी कंपनियां, सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये लगा रहे हैं। कितने स्टॉक बचे? 27। अब 27 स्टॉक देखने में कितनी देर लगी बताओ? इसमें तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, है ना, व्हाट इज दिस। इसमें बड़ी कंपनी है यार। हिंदुस्तान यूनिलीवर नो, प्रीवियस स्पेशलिटी नो, है ना, श्याम इंडस्ट्रीज नो, पल ग्लोबल मे बी यस, है ना। बट देखना, ये जो है टेक्सटाइल का कंपनी है ना, सो लाइक इसमें एग्जिट भी आपको ध्यान से करना पड़ेगा। एमजीएल नो, एंटेरो यस यस, है ना। अगर ये बिजनेस मॉडल, आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जाओ ये पढ़ो जाके, ये बिजनेस मॉडल क्या है, और फिर आप उसके बारे में सोचो। मतलब इसमें कोई मैकेंजी का रिपोर्ट नहीं पढ़ना है, बीसीजी का एनालिस्ट नहीं बनना है आपको, चैट जीपीटी का काम नहीं है। आपको बस ये सोचना है कंपनी क्या काम करती है, उस कंपनी का जो काम है उसमें और फोकस अगर वो करे, तो वो धंधा और बड़ा हो सकता है कि नहीं, वो टेलविंड है कि नहीं उस डायरेक्शन, बस ये सोचना है। अब देखो, ऊपर हमने अभी पर्ल ग्लोबल देखा था, नीचे आ गया तो केपीआर मिल भी दिख गया। तो मतलब 2 स्टॉक हमको दिख गए एक ही फील्ड के, कौन से? टेक्सटाइल, है ना। शैले होटल आपको दिख गया, तो इसमें तो एसबीडी है। अब देखते हैं क्या और होटल वाले हैं क्या एसबीडी के साथ, है ना। अभी तो नहीं है। रिकॉल देखो, ये अच्छा लग रहा है ना, ये देखो, ये छोटा एक करेक्शन, उसके बाद एक बड़ा करेक्शन, फिर एक छोटा करेक्शन, फिर उससे छोटा करेक्शन, नाउ इट इज ट्राइंग टू गो अप। इज दैट कि आज मार्केट थोड़ी वीक थी, है ना। देखो, चंबल वगैरह है, कोटक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब दिस वन इज लुकिंग नाइस। अब वो रिकॉल चला है इधर, ये भी चला है ना, सो लाइक समथिंग इज मूविंग इन द ऑटो, है ना। चलो और क्या है जी? आईटीसी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, है आईटीसी। देखो कितनी देर लगी यार 27 स्टॉक देखने में। अब ये लोड होने में देर लग रहा है क्योंकि सिस्टम हमारा थक गया।
anybody who's like interested in gifting some MacBook, तो I'm open to take gifts, है ना, वो एक ऑफर ओपन है। तो अगर आप गिफ्ट देना चाहते हो मैकबुक को ही, ठीक है, ये अच्छी बात है क्योंकि सिस्टम जो थक गया, नहीं तो आ जाएगा सिस्टम। देखो ITC नॉट इंटरेस्टेड है, लेटेंट व्यू, लुक्स नाइस चार्ट राइट, अच्छा चार्ट लग रहा है लेटेंट व्यू का। करूर वासिया, हाँ, इसका भी चार्ट अच्छा है, बट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो ना, से अच्छा चार्ट। रेली गेयर नॉट दैट ग्रेट, बट मंथली अच्छा, रेली गेयर के बाद में देख लेना। हाँ, तो बैंक के कई सारे स्टॉक दिख रहे हैं, वो अच्छे दिख रहे हैं। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल है ना, वो टेक्सटाइल का नहीं है बट अपैरल का कंपनी है, ठीक है। सो कितनी देर लगेगी, नॉट मच राइट, ऐसे आप कर सकते हो रिसर्च, इट डज नॉट टेक मच टाइम, इट जस्ट दैट आपको थोड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, I have 2 more minutes. If you have any question, you can ask. अब जैसे मैं वॉच लिस्ट का डालूं इसमें, भाई राजेश जोसेफ जी है ना, वैल्यू पिक, तो देखो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक है, उनका सिर्फ एक ही स्टॉक है जिसमें वीकली में न्यूज ग्रीन हुआ, वो कौन सा वीकली? क्योंकि किसी वो जितना भी महान हो, किसी ने स्टॉक पिक किया राइट, बट वो स्टॉक चलेगा कब? वो स्टॉक चलता तभी है, मल्टी बैगर तभी बनता है जब न्यूज ग्रीन हो। कोई बहुत महान है, बड़ी अच्छी बात है, उस स्टॉक का क्या करूं? वॉचलिस्ट में डाल दो, है ना। अगर इसको मल्टी बैगर होना है तो पहले न्यूज क्या करना पड़ेगा? ग्रीन। न्यूज अभी इसका वीकली में क्या हो गया? ग्रीन। डेली में थोड़ा पहले हो गया था, तो अगर आपने स्टडी किया है, प्रॉब्ली सम पोर्शन यू कुड हैव एडेड अर्लियर, मोर यू कैन ऐड वंस वीकली टर्न ग्रीन। देखो कितना सुंदर नजारा है। अब मुझे नहीं, वीफिन नाम से लग रहा है फाइनेंस की कंपनी है कुछ, है ना। अब वीफिन पता नहीं फाइनेंस में क्या करती होगी, एनबीएफसी तो हो नहीं सकती, बहुत छोटी कंपनी, एनबीएफसी कैसे होगी ना, उसके लिए कैपिटल बहुत सारा चाहिए। हो सकता है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में हो ना, कि उसमें उतना पैसे नहीं लगते, वो थोड़ा अलग टाइप की फाइनेंसिंग होगी राइट। अब यहाँ पे देखो ये ग्रीन था, ग्रीन था, ग्रीन था, अब इधर रेड हुआ, रेड होने के बाद से ये तब से क्या कर रहा है? 2 साल से कुछ नहीं कर रहे ना, सॉरी 1 साल, है ना, 15 महीने हो गए राइट। अगर आपको ये स्टॉक यहाँ 410 में बहुत अच्छा था, तो भाई 200 रुपए में तो आपको डबल बाई करना चाहिए था ना। दिस इज व्हाट न्यूज़ हेल्प्स यू विद, ओके। विद दिस विल एंड दिस सेशन, है ना, और ये हम अपलोड कर देंगे रिकॉर्डिंग आप सबके लिए ना। और लैक्स में आपको यूज करना है डेली, एक आप प्रॉमिस कर दो, एक प्रतिज्ञा ले लो, रोज मुझे आधे घंटे लैक्स को देना है। एक्सचेंज फाइलिंग्स, इनसाइडर डील्स, बल्क ब्लॉक डील्स, न्यूज में क्या चल रहा है, मार्केट पल्स में क्या हो रहा है, कौन से स्टॉक है जो ज्यादा चले, कुड आई हैव पिक देम अर्लियर, हाउ आई कुड हैव पिक देम अर्लियर, वॉच लिस्ट बनाओ, पोर्टफोलियो में डालो, डू ऑल दिस। हाँ, समय और जैसा होता है ना, हाथ गंदे करने पड़ते। कैरम खेलोगे तभी सीखोगे, कैरम बुक से पढ़ के कोई नहीं सीखता, इन्वेस्टिंग बुक पढ़ के कोई नहीं सीखता, ट्रेडिंग बुक पढ़ के कोई नहीं सीखता। बुक पढ़ो, अच्छी बात है, उसके अलग बेनिफिट्स है, बट डू इट बिकॉज यू एक्चुअली वांट टू बिकम बेटर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। वो लैक्स यूज करना पड़ेगा, वो करो। उसके बाद इससे अच्छा अगर आप कहीं कहीं आपको कोई फीचर मिलता है कि भाई ये अच्छी चीज है, अब लाइव प्राइसेस अभी हमारे पास नहीं है, तो दैट विल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। अब हम लॉट ऑफ कॉस्ट है ना उसकी, वो कॉस्ट जस्टिफाई करने का स्टेज पहुंचना पड़ेगा, उस टाइप के यूजर्स चाहिए होंगे, देन ओनली विल बी एबल टू डू दैट, है ना। बट बाकी अगर आप वैसी चीजें हैं कि नहीं इसको ऐसे कर दे तो बेहतर हो जाएगा, वी आर ओके, वी आर ओपन टू दोज आइडियाज ना। फील फ्री टू शेयर, ना टेलीग्राम में आप शेयर करो, ट्विटर पे शेयर करो राइट, या इसमें भी आप, है ना, जैसे बग वाला फीचर है, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो राइट। एंड बाय द वे बिफोर आई लीव, ये आप जो है पल्स में जाना, सेक्टर्स में जाओ, रोज 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 सेक्टर्स में जाओ, और ये चुपचाप 1 मंथ वाला शॉर्ट करो, 1 मंथ वाला शॉर्ट करो, ठीक है। देखो बता रहे भाई, टेलीकॉम, इंफ्रा, एक्सचेंजेस, सीडीएमओ, है ना, डायग्नोस्टिक्स, दीज आर लाइक टॉप 3-4 सेक्टर्स। वो बात अलग है, कंपनी उसमें बहुत कम है, ठीक है। अब उसमें भी HFCL अब टेलीकॉम में पड़ा हुआ है, इसलिए वो बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। एक्सचेंजेस में ओनली 3 भी है राइट, NSE लिस्ट हो जाएगा तो 4 हो जाएंगे राइट। सीडीएमओ में देखो, है, तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर्स हैं, आपको बड़ी आसानी से, है ना, लॉरस है, कोहेंस है, न्यूलैंड है, ये सब बड़ा आसान है आपको पिक करना। इज जस्ट दैट पिक करने के बाद आपको बिलीफ होना चाहिए कि यार ये स्टॉक अच्छा करेगा। करूर वैसा बाई तो कर लिया, बट क्या ये कलेजा है कि जब तक उसमें कुछ खराब नहीं हुआ तब तक उसको होल्ड कर, नहीं होल्ड करोगे तो पैसा नहीं बनेगा ना। विद दिस आई विल टेक योर लीव, विल मीट नेक्स्ट मंथ, है ना, सेम डे से, लाइक सेम डेट 15th of June,
इवनिंग 8:30 है ना, उसके बाद 1 घंटे के लिए we'll meet and we'll walk through some other use cases of lakhs, some other areas we'll explore, and some case studies we can take, and few of your questions. Hopefully this session was something that gave you more confidence about the system, and more discipline you'll bring in your life, so that आप रोज आधे घंटे लैक्स को यूज करो, ताकि आपकी चीजें जो है भविष्य में और अच्छी हो जाए। क्योंकि देखो, अगर आप नहीं करोगे ना, तो फिर चीजें अच्छी नहीं होगी, है ना। तो वो आपको थोड़ा तो करना पड़ेगा। ऑल राइट, आई टेक योर लीव। थैंक यू, बाय। थैंक यू भीम।